Very good afternoon to all. Welcome to our weekly Tally CA Connect. I'm sure today's topic of discussion is a very hot topic among all of our professionals, that is recent GST amendments. And Rajesh sir being an expert on this topic, he'll also be talking about the GST updates as per the Finance Bill 2022 passed yesterday, and of course, Tally Prime. I'm sure most of you here are already familiar with him. I would like to give a brief introduction. CA Rajesh is an FCA. He's also qualified MBA, LLB, and company secretary. He's empaneled as a faculty for GST training by ICI Delhi. He has a rich experience in taxation, accountancy, corporate finance, and auditing. He has vast experience to handle assessment cases for taxation as well. He has delivered many lectures at various fora. He was also a regular speaker at FM 107.8, that is Radio Madhav Rachna, during business hour and finance matter. And not the least, we are proud that CA Rajesh is also a Tally evangelist. I welcome you, sir. Thank you for taking out time from your very busy schedule. Welcome to you. Thank you very much for giving me this opportunity to share my little knowledge on this topic, recent amendment in GST. और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि इन the 2nd of Feb by program है और 1st Jan को फाइनेंस बिल 2022 जो हमारे FM साहिबा हैं उन्होंने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया है. So I will take few examples from the finance bill and I will deliberate with the recent amendment along with the proposals which is made by the finance minister in the finance bill 2022. इसके साथ साथ जो टैली प्राइम में बहुत बढ़िया फीचर्स आए हैं उन पे भी मैं डेलिब्रेशन दूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा आपको और आपको लाइव कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि आप जीएसटीएन पोर्टल पे जाए बिना हाउ यू कैन वेरीफाई योर जीएसटीएन नंबर, हाउ यू कैन वेरीफाई your HSN code, and there are so many other information which was not in earlier version of Tally ERP9 but they are in now in Tally Prime. So Tally Prime बहुत important है and आपको पता होगा last year एक notification आया था जो postpone हो गया था in case of MCA that every software have the facility of audit trail. अब कईयों को लगा पता नहीं Tally के अंदर ये facility है कि नहीं है, लेकिन टैली में पहले भी थी और टैली ने कुछ और भी नई फीचर्स डाली हैं उनके साथ में. टैली इस दिशा में भी अपना डेवलपमेंट कर रहा है. तो एज ए टैक्स प्रोफेशनल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम जाने इस बात को कि टैली प्राइम क्यों इंपॉर्टेंट है, टैली प्राइम में क्यों जाना चाहिए. अभी तक अगर हमने टैली प्राइम के अंदर माइग्रेट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मैं आपको बताऊंगा वो कौन से रीजंस है आपको टैली प्राइम में क्यों माइग्रेट करना चाहिए. नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड स्टार्ट विद द डेलिब्रेशन with the proposals as given by the finance minister in finance bill 2022. I will take proposals which is with respect to the goods and service tax, not other than that, not mainly not with respect to the income tax. My deliberation on indirect tax, particularly goods and service tax. जो पहला उन्होंने प्रपोजल दिया जीएसटी में, देखिए जीएसटी में एक सेक्शन है सेक्शन 16 और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. एवरी प्रोफेशनल शुड नो व्हाट इज द सेक्शन 16 एंड व्हाट इज द सेक्शन 17 बिकॉज व्हेन ए रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द रजिस्ट्रेशन ही विल आस्क ओनली वन टाइम. एक बार से ज्यादा नहीं पूछेगा, वो एक ही तो रजिस्ट्रेशन लेना होता है. हमारे पास 50 क्लाइंट है तो उसमें से हो सकता है 10 के पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन केवल एक ही बार पूछता वो लाइफ टाइम में कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, आप रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी फीस होगी. बट ही विल आस्क वन क्वेश्चन एवरी डे वेदर दिस आईटीसी विल बी अवेलेबल टू मी और वेदर दिस आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल टू मी. सो एवरी टैक्स प्रोफेशनल शुड नो व्हाट इज द सेक्शन 16, व्हाट इज द सेक्शन 17. इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. जो भी जीएसटी में प्रैक्टिस करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन. और हमें यह भी पता है कि जीएसटी में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं और सामने आए, प्रेस रिलीज भी हमने देखी है. तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट किया था सेक्शन 16 में. सेक्शन 16 बेसिकली 4 कंडीशन प्रेस्क्राइब करता है. इफ एनी रिसिपिएंट वांट्स टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट देन ही नीड टू कंप्लाई 4 कंडीशंस. फर्स्ट, he has the invoices or debit note or any other
document as may be prescribed. Second condition, he has received the goods or services. Third condition, supplier has paid the tax from the admissible input tax credit or cash. And last one, recipient has filed his GSTR 3B as the provision of section 39. ये 4 कंडीशन थी जो रिसिपिएंट को फुलफिल करनी थी, बट फिनांस एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया AA, और ये अभी ही 1 जनवरी 2022 से इसको नोटिफाई किया गया है। एक्ट पहले बन चुका था, नोटिफाई अब हुआ। क्या बताया इन्होंने? You will be eligible to take input tax credit if supplier has communicate to the recipient as per the provision as given in section 37(1). 37 के अंदर प्रेस्क्राइब किया हुआ GSTR 1 को सप्लायर ने GSTR 1 में रिसिपिएंट को कम्युनिकेट कर दिया हो तो आपको क्रेडिट, किसको? रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा। ये लास्ट वाले फाइनेंस एक्ट की बात बता रहा हूं। अभी क्या प्रपोजल दिया इन्होंने, तो इसका मतलब 5 कंडीशन हो गई, पहले 4 थी, एक और आ गई, कौन सी? कि सप्लायर ने GSTR 1 में रिसिपिएंट को उसके 2B में आएगा कम्युनिकेट कर दिया। अब इन्होंने क्या प्रपोजल दिया? प्रपोजल ये दिया, जो रिसिपिएंट के 2B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है, जो रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट कम्युनिकेट हुआ है, दैट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड एज पर सेक्शन 38। अभी सेक्शन 38 बीच में कहां से आ गया? ब्लॉक क्रेडिट की कंडीशन तो सेक्शन 17 में दे रखी है, और कुछ कंडीशन जो हमारा बिजनेस यूज का नहीं है, अगर हम सेक्शन 16 सेक्शन 1 को देखेंगे तो कुछ कंडीशन वहां पे भी दे रखी है हमारी। इन्होंने नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया आफ्टर क्लॉज बी। क्या इंसर्ट किया? द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। मींस सप्लायर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसिपिएंट को कम्युनिकेट कर दिया है, बट it should not be restricted as per section 38. Now we need to see that what are those conditions under which input tax credit can be restricted under section 38. अब 38 पे मैं आपको लेके चलता हूं। नेचुरल है, जो करंट के अंदर हमारा प्रेजेंट लॉ है 38 का, उसमें से कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर जो सेक्शन 38 है ना, वो क्या कहता है? वो ये कहता है आपको जो GSTR 2 फर्निश करनी है डिटेल। जब आप GSTR 2 फर्निश करेंगे और आपका कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो GSTR 1 के थ्रू आपके 2A में नहीं आया था, आप GSTR 2 में डालेंगे, रिसिपिएंट के 1A में अपडेट हो जाएगा, और रिसिपिएंट का जो सप्लायर का 1A है उसमें अपडेट हो जाएगा, और उसका 1 अमेंड हो जाएगा, और आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसा लॉ बनाया गया था GSTR 1, 2, 3 के थ्रू, लेकिन हमें पता है GSTR 2 तो भरी नहीं जा रही। अब इन्होंने क्या कर दिया, जब GSTR 2 फर्निश ही नहीं हो रही, तो जो सेक्शन 38 था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो प्रेजेंट में 38 है उसमें 5 सबसेक्शन है, वो सारे खत्म कर दिए। अब ये 38 में एक नया सेक्शन ले आए, 38 के अंदर नए 2 सबसेक्शन ले आए और पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या सब्स्टिट्यूट किया जी? इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया कि जो रिसिपिएंट है ना, उसको 2 टाइप की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होंगी। पहली, वो जो सप्लायर ने GSTR 1 में इंफॉर्मेशन फिल कर दी, वो रिसिपिएंट को कम्युनिकेट हो जाएगी। दूसरी, वो वाली सप्लाईज जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। अब आप ध्यान से देखना, जब सप्लायर GSTR 1 फाइल करता है ना, तो रिसिपिएंट के 2A में आ जाता है। एक तो ये हो गई। दूसरी, वो जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। अब गवर्नमेंट कौन सी प्रेस्क्राइब करेगी, उनमें से मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। जैसे आपने इंपोर्ट पे IGST पे किया, तो वो आपका रिसिपिएंट को अपनी स्टेटमेंट में एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होगी, उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब वो स्टेटमेंट का नाम क्या होगा, ये यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है वो GSTR 2B ही होगी, लेकिन नाम नहीं बताया। हो सकता है नाम उसका चेंज कर दे। अभी फिलहाल इतना आप समझ लें, 38 सेक्शन में क्या किया है, रिसिपिएंट को 2 टाइप की सप्लाई कम्युनिकेट होंगी। फर्स्ट, वो जो सप्लायर ने GSTR 1 में अपनी फाइल की, वो रिसिपिएंट को कम्युनिकेट होगी, और दूसरी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी कि रिसिपिएंट को कौन कौन सी सप्लाई कम्युनिकेट होंगी। अब ये रिसिपिएंट को कम्युनिकेट हो गई। अब ये रिसिपिएंट को कम्युनिकेट होंगी ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में। व्हेन रिसिपिएंट लुक at the auto generated statement, it may be 2B or it may be other than 2B, then there may be a 2 possibility.
अब वो कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी? पहली पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि उसको 2B में क्रेडिट दिख रहा होगा या उसको 2B में क्रेडिट नहीं दिख रहा। अब मैं ये मान के चलता हूं 2B में क्रेडिट दिख रहा है। अब जो 2B में क्रेडिट दिख रहा है, then in subsection 2 they said that auto generated statement shall consist of, तो जो auto generated statement होगी उसमें दो टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, the detailed of inward supply in respect of which input tax credit will be available and a detailed of inward supply in respect of which input tax credit will not be available। ध्यान देना मेरी बात का, आपको ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट मिलेगी, 2B मिलेगा। अगर ये 2B का नाम चेंज नहीं करते हैं, 2B को ही रखते हैं, तो मैं 2B यूज कर रहा हूं, 2B को अपने पास में रखेंगे। मैं रिसिपिएंट हूं, मेरे सामने 2B आएगा तो उसमें दो टाइप के क्रेडिट होंगे। फर्स्ट, जिसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और जिसका नहीं मिलेगा। अब जिसका नहीं मिलेगा वो सेक्शन 38 में रेस्ट्रिक्टेड है। उसी सेक्शन 38 में रेस्ट्रिक्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट की इन्होंने बात करी है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज BA के अंदर, जो नया प्रपोजल है कि दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड एज पर सेक्शन 38। अब ये कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा जो सेक्शन 38 में रेस्ट्रिक्ट किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अंदर इन्होंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जब इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उसके बाद भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो कौन सा होगा? गवर्नमेंट ने क्या किया, आपने मतलब सप्लायर हो आप, मान लीजिए मैं रिसिपिएंट हूं, आप सप्लायर हो, you have taken new registration, then government can prescribe a cooling period. In cooling period, when you file your GSTR1, ITC will reflect in my 2B, but ITC will not be available to me। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कुछ लोग नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करके निकल लेते हैं, भाग जाते हैं फ्रॉड करके। हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन लेके आए कि अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो आप जो पहले 3 महीने GSTR1 फाइल करेंगे, 5 महीने करेंगे, 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, आपने रिसिपिएंट को सारी कंडीशन फुलफिल की है, बट ITC टू रिसिपिएंट विल नॉट बी अलाउड। ये पहले रेस्ट्रिक्शन लगाया सेक्शन 38 में। सेकंड रेस्ट्रिक्शन उन्होंने क्या लगाया, इफ सप्लायर हैज नॉट पेड द इनपुट टैक्स क्रेडिट एट ऑल, उसको टैक्स की पेमेंट करना था, टैक्स की पेमेंट नहीं किया, GSTR1 में उसने आउटवर्ड सप्लाई को डिक्लेयर कर दिया बट 3B में डिक्लेयर नहीं किया, इन दिस केस ITC will not be available to the recipient and it will be restricted by section 38. This restriction is other than section 17 section 5. Next, सप्लायर ने आपको आउटपुट सप्लाई दी और आप सप्लायर हो, आपने मुझे आउटपुट सप्लाई दी, मेरी इनवर्ड सप्लाई। अब क्या होगा, you need to show your outward supply in GSTR1. In GSTR1 there will be tax payable. In GSTR3B you need to pay your tax on the basis of GSTR1. But if your tax payable is more than the tax paid and it exceeds certain limit, is it exceed certain limits, certain percentage, then ITC will not be available to the recipient. 1 करोड़ रुपए की सप्लाई थी आपकी, आपने मुझे सप्लाई किया, आपने 1 करोड़ रुपए पे 18 लाख रुपए टैक्स पे करना था, लेकिन आपने 18 लाख रुपए टैक्स पे ना करके यू हैव जस्ट पेड ऑफ रुपीज 15 lakhs। अब मुझे लिमिट अभी नहीं पता, अगर मान लीजिए मैं मान के चलूं देयर मे बी अ लिमिट ऑफ रुपीज 5 lakhs, बिकॉज लिमिट इज 5 lakhs, you need to pay an amount of rupees 18 lakhs, but actually you have paid only rupees 10 lakhs, then this difference is exceed the limit. In this case, ITC will not be available to me. गलती किसकी है, सप्लायर की, और ITC किसको नहीं मिलेगा, रिसिपिएंट को। नेक्स्ट कंडीशन है, जो अगर 38 में रेस्ट्रिक्टेड है तो आपको ITC नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, रिसिपिएंट को। तो मैं वो बता रहा हूं वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं, वो कौन कौन कंडीशंस है व्हेन ITC will be restricted under section 38. In next, जब you are supplier, I am a recipient, you need to pay your output tax liability in GSTR3B and you have availed input tax credit for the payment of your output tax liability in excess which should be actually available to you.
जितना आपको मिलना चाहिए था उससे आपने ज्यादा अवेल कर लिया और टैक्स की पेमेंट कर दी, देन आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल टू मी। गलती किसकी? सप्लायर की। भुगतेगा कौन? रिसिपिएंट। नेक्स्ट, if supplier default in payment as per the provision of section 49 subsection 12, then ITC will not be available to the recipient. And last category, government may prescribe certain category of persons. In those cases, ITC will not be available to recipient, irrespective that it is reflecting in their GSTR 2B. तो सर ये सेक्शन 16 का जो अमेंडमेंट था वहां पर जो क्लॉज बी के बाद बी ए लेके आए, जहां पर उन्होंने ये बताया कि आपका वो सेक्शन 38 में रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, तो वो रेस्ट्रिक्शन कौन सी है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। सेक्शन 38 और सेक्शन 16 का जो अमेंडमेंट था वो मैंने ले लिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे बीच में भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट in section 16 subsection 4, in section 16 subsection 4, अगर कोई भी इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना रह गया तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में सितंबर के मंथ के लिए जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है या एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो पहले हो वहां तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब क्या कर दिया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर जो ये ड्यू डेट फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, सितंबर मंथ रिटर्न लिखा हुआ था, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, इट इज नो मोर, इट विल नो मोर। अभी तो है ना, अभी तो प्रपोजल है ये, उन्होंने क्या कर दिया, इसको बोल दिया 30 नवंबर। कहने का मतलब ये है अगर कोई इनवाइस का आईटीसी आपका छूट गया, आपको ड्यू डेट तक जो कंडीशन थी वो खत्म कर दी, अब इन्होंने उसकी डेट को कर दिया 30th डे ऑफ नवंबर या एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो पहले हो वहां तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। और एनुअल रिटर्न तो बाद में ही जाती है ना, पहले कौन भर देता है, तो नेचुरल है अब इफेक्टिव डेट आपकी 30th नवंबर हो गई। अब इसका इंपैक्ट क्या आया, दो इंपैक्ट है। पहला इंपैक्ट तो सर इसमें ये आया कि आपको एडिशनल टाइम मिल गया, जो रजिस्टर्ड पर्सन आपको एडिशनल टाइम मिल गया। पहले सितंबर मंथ की जो रिटर्न थी वो ड्यू डेट तक आपको फाइल करनी थी, अब आपको पूरा अक्टूबर मिल गया और आपको पूरा नवंबर मिल गया, पहली चीज। दूसरी चीज, एक थोड़ा सा नुकसान भी हुआ यहाँ पे, अगर मान लीजिए सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर देते थे ना, मान लीजिए वो 30 नवंबर के बाद हो जाती, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपका बाद में मिल सकता था। नाउ इट इज डीलिंग विद द due date of furnishing of return under section 39 for the month of September. Now date is fixed. You will not allow to take any input tax credit with respect to the missing invoice of financial year, sorry, with respect to the invoice which you have taken ITC in your books of accounts, but you have not taken in your GSTR 3B, then ITC will be allowed to you up to the 30th day of November or annual return, whichever is earlier. Next amendment, section 29. Section 29 pertains to the cancellation of registration. GSTR, sorry, क्वार्टरली रिटर्न के केस में हमारी जो रिटर्न है वो एनुअली जाती है। नौ में क्या लिखा हुआ है, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं की, क्वार्टरली कौन सी, जो एनुअली जाती है, वो फाइल नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो असेसिंग ऑफिसर को क्या था, कम से कम 3 साल का इंतजार करना पड़ता। अब उन्होंने क्या किया, उनको पता लगा ये गलती हो गई है, क्योंकि पहले वो क्वार्टरली थी, फिर उसके बाद उन्होंने एनुअली कर दिया था। जीएसटीआर 4 जो आपकी है वो एनुअली जाती है। तो अब उन्होंने क्या किया, जो एनुअल रिटर्न है, सॉरी जो आपकी है, यस, जो आपकी रिटर्न है ईयरली, अब उसमें कर दिया जैसे ही आपका ईयर खत्म होगा और 3 महीने आपके निकल गए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए था ऐसे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अगर आप मंथली फाइलर हैं, पहले क्या लिखा हुआ था, a continuous period of 6 months. If any registered person has not filed his monthly return for a continuous period of 6 months, now it is proposal that such continuous tax period as may be prescribed. गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी कि वो जो टैक्स पीरियड होगा वो 6 महीने का होगा, 3 महीने का होगा, 5 महीने का, वो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है। इट मे बी मोर देन 6 मंथ, इट मे बी लेस देन 6 मंथ।
सेक्शन 34, सेक्शन 34 related to credit note and debit note. We all know that there is a restriction in furnishing the credit note. Credit note can be furnished up to the due date of under section 39 for the month of September. इसके बाद हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इन्होंने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 को 30th नवंबर से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसी तरह से यहाँ पर भी जो क्रेडिट नोट है जो लास्ट ईयर के थे और आपको इशू करने हैं या आपको नेक्स्ट ईयर तक इशू करने हैं, वो उनकी डेट उन्होंने बोल दिया 30th नवंबर तक आप ऐसा कर सकते हैं। सेक्शन 37, सेक्शन 37 हमारा परटेन्स करता है जीएसटीआर 1 से। सेक्शन 37 में इन्होंने अमेंडमेंट किया है कुछ। पहला अमेंडमेंट इन्होंने क्या किया, सबसेक्शन 1 में कुछ वर्ड जोड़ दिए, सेल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली। इससे पहले क्या कर दिया, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन। कुछ कंडीशन रेस्ट्रिक्शन लाएंगे तो हमें पता चलेगा। इसके बाद जो ये सेकंड है ये भी इसी एस्पेक्ट पे है। एक इन्होंने क्या अमेंडमेंट करी, आप याद करिए, जब जीएसटीआर 1 फाइल होनी है तो वहां पे कंडीशन लिखी हुई थी कि आप 11th से लेके और 15 तक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। वो कंडीशन कब थी, जब जीएसटीआर 1, 2, 3 का कंसेप्ट था। अब जीएसटीआर 1, 2, 3 का कंसेप्ट ही नहीं रहा तो इस कंडीशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो इन्होंने यहां से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया उसको। और इसके बाद में इसके 2 प्रोवाइजो थे, तो उसमें कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, जहां पर प्रोवाइडेड फर्दर दैट लिखा हुआ था वहां पर प्रोवाइडेड दैट करना पड़ा इनको, क्योंकि पहला प्रोवाइजो उन्होंने डिलीट कर दिया और नेक्स्ट भी यही अमेंडमेंट है। ये जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है एक और, इसको मैं बाद में लूंगा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने अमेंडमेंट किया। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर इन्होंने जो ड्यू डेट ऑफ सितंबर थी उसको 30th नवंबर कर दिया। सेक्शन 34 में भी 30th नवंबर कर दिया। जीएसटीआर 1 में भी 30th नवंबर कर दिया। जीएसटीआर 1 में करेक्शन आप 30th नवंबर तक कर पाओगे, और जो आपकी जीएसटीआर 3 भी है उसमें भी इन्होंने इसको 30th नवंबर तक कर दिया। तो सब में वहां पर इन्होंने करेक्शन की टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया है। एक इन्होंने और उसमें कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई, कंडीशन नहीं लगाई, बेसिकली जो अपना सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 है ना, उसके बाद इन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया। They said it is proposed that a registered person shall not be allowed to furnish detail of outward supply under section 37(1) for a tax period if detail of outward supply for any tax period, any previous tax period has not been furnished by him. आपने पिछले टैक्स पीरियड की कोई अगर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, then you will not be allowed to file GSTR 1 for the next period. Previous period की फाइल नहीं करी, then you will not allow for the next period. But government reserve their right by this proviso. If government wants, then he can allow to some persons that if you have not filed your GSTR 1 for the previous tax period, still you can file for the coming period. सेक्शन 38 के अंदर जो अमेंडमेंट आया है, सेक्शन 16 में मैंने आपको इसको लिंक कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन 16 एंड सेक्शन 38, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसिपिएंट के ऊपर ही सारी लाइबिलिटी है, सप्लायर पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। सप्लायर पर जहां जहां लाइबिलिटी है वहां पर उतने चेक्स नहीं लगाए गए हैं जितने चेक्स इन्होंने सेक्शन 38 और सेक्शन 16 में लगा दिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट, क्लॉज 104 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 इन सेक्शन 39। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में रिटर्न फाइलिंग की डेट थी 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बट नाउ इट इज प्रपोज्ड दैट इट विल बी 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। पीरियड को कम कर दिया, पहले 20 थी अब 13 कर दी। एक इन्होंने और किया 39(7) के अंदर, आप याद करिए हम लोग जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ क्यूआरएमपीएस। जिन्होंने क्यूआरएमपीएस किया है बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन्होंने सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, जीएसटीआर 3B फाइल करनी है और आपको टैक्स पे करना है, मंथली टैक्स पे करना, मंथली रिटर्न फाइल होगी। जब से क्यूआरएमपीएस आया था इन्होंने एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया था, किसके लिए, क्यूआरएमपीएस वालों के लिए, कि वो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो
फर्स्ट प्रोवाइजो था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके अंदर इन्होंने जो प्रोवाइजो और ये डाला है ना कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए टैक्स पे करना, याद करिए 35 हमें पे करना होता था और कुछ केसेस में तो प्रीवियस मंथ के हिसाब से पे करना होता था। तो क्या किया है, इसको इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और इन्होंने इसको एक चेंज क्या किया, इन्होंने जो क्लॉज बी था, इन लिeu ऑफ अमाउंट रेफर्ड इन क्लॉज ए, मतलब क्लॉज ए में जो अमाउंट दिया हुआ है, क्लॉज ए में कौन सा अमाउंट दिया हुआ है, क्लॉज ए में वो वाला अमाउंट है, मैंने क्यूआरएमपीएस को ऑप्ट किया है और मुझे क्यूआरएमपीएस में पेमेंट करनी है। मैं सेल्फ असेस करूंगा अपनी लायबिलिटी। सेल्फ असेस कैसे करूंगा, ये मेरा आउटपुट टैक्स है, ये मेरा आईटीसी है, नेट आई विल पे। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी तो था ना, कौन सा, 35% वाला, जहां मुझे पिछले क्वार्टर या मंथ का देखना था, उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। नाउ दे पुट इट इनटू सेक्शन 37 बाय विद दिस प्रोवाइजो सब्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने क्लॉज बी डाल दिया। अगर आप सेल्फ असेस नहीं करना चाहते तो गवर्नमेंट ने जो आपको प्रोविजन बता रखा है 35% आपको पे करना है पर मंथ, तो वो उन्होंने बी में उसको लीगल बैकिंग दे दी जो पहले नहीं थी। और 39(9) में इन्होंने क्या किया, सेक्शन 39(9) के अंदर एक तो चेंज कर दिया, आपका क्या चेंज कर दिया, नंबर 1 कि आप 30 नवंबर तक अमेंडमेंट कर पाएंगे, और दूसरा आपने अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी तो आप 3B फाइल नहीं कर सकते। और इन्होंने एक और अमेंडमेंट किया, क्योंकि अब सेक्शन 37 और 38 तो वो जो एक्चुअल पिक्चर होनी चाहिए थी जीएसटीआर 1, 2, 3 की, वो इन्होंने खत्म कर दी। तो यहां से इन्होंने क्या किया, जो 39(9) में सब्जेक्ट टू हुआ करता था, सब्जेक्ट टू सेक्शन 37, 38, क्योंकि उसमें तो अमेंडमेंट हो सकती थी, तो 39 को इन्होंने सब्स्टिट्यूट, 38 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसलिए यहां से इन्होंने सब्स्टिट्यूट को हटा दिया और इसकी जगह लिख दिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37, 38 दे हैव रिटन जस्ट वेयर, क्योंकि उसकी कोई अब जरूरत नहीं रही सेक्शन 38 को सब्जेक्ट टू करने की। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। इफ एनी पर्सन हैज नॉट फाइल जीएसटीआर 1 देन ही विल नॉट अलाउड टू फाइल जीएसटीआर 3B। लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो लगा दिया, गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन लेके आ सकती है और कुछ पर्संस को अलाउड कर सकती है कि अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया देन यू कैन आल्सो फाइल जीएसटीआर 3B। सेक्शन 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट बिफोर deliberating on section 41 I want to take clause number 106, next clause, section 42, 43, 48 of CGST act shall be omitted। बहुत परेशान कर रहे थे सेक्शन 42, 43, 43A। अब ये सेक्शन थे किसके, 42, 43 और 43A तो अभी आया ही नहीं था, उसने कभी लॉ का पार्ट तो बना था पर ऑपरेशन में नहीं था ये। और 42, 43 क्या है, मैचिंग के। सप्लायर ने क्या किया, जीएसटीआर 1 फाइल किया, रिसिपिएंट के 2A में आ गया, रिसिपिएंट ने क्या किया, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट कम नहीं किया लेकिन सप्लायर ने आउटपुट कम कर दिया, तो ये मैचिंग मिसमैचिंग रिवर्सल का कंसेप्ट हो गया। इसी तरह से रिसिपिएंट ने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया लेकिन सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में आउटपुट सप्लाई नहीं दिखाई, तो अगेन एक तरफ तो आउटपुट सप्लाई कम हो गई, दूसरी तरफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस क्लेम हो गया। ये बात करता था सेक्शन 42, 43। इसके अंदर इनको अपनी आउटपुट सप्लाई इंक्रीज करनी थी, 43 में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको डिक्रीज करना था एक सर्टेन पीरियड के बाद में, नेक्स्ट मंथ। अब वो हुआ नहीं तो उसके चक्कर में क्या था, इनको सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 आप याद करिए, 42(10) और 43(10) के रेफरेंस में 24% इंटरेस्ट का प्रोविजन था। अब जब जीएसटीआर 1, 2, 3 नहीं है तो इनकी कोई रिलेवेंसी नहीं थी सेक्शन 42 और 43। तो इन्होंने क्या किया, सेक्शन 42 और 43 को डिलीट कर दिया। अब जब सेक्शन 42 और 43 को डिलीट किया, अब मैं आपको सेक्शन 41 पे लेके चलता हूं। सर जो सेक्शन 41 है प्रेजेंट में, वो क्या कहता है, वो ये कहता है प्रोविजनली आईटीसी, प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ आईटीसी, यूज ऑफ आईटीसी एंड देयर प्रोविजनल असेसमेंट। कहने का मतलब ये सेक्शन 41 प्रेजेंट में क्या कहता है, इसके दो सब सेक्शन है। पहला कहता है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली आपको अवेल करना है और यू कैन टेक इट इनटू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर थ्रू जीएसटीआर 3B। और सेकंड कंडीशन क्या थी
कि जो आपका इनपुट टैक्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, आप क्या करेंगे, आप उसको सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, सेक्शन 41 डील करता था प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट से, और प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइनल कब होता था, जब वो सेक्शन 42 और 43 का टेस्ट पास करता। नाउ बिकॉज सेक्शन 42 एंड 43 विल बी ओमिटेड, देन क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब 42 43 है ही नहीं, तो जो सेक्शन 41 में प्रोविजनल है वो फाइनल कब बनेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जब 42 43 डिलीट हुए तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ गई सेक्शन 41 में अमेंडमेंट करने। अब सेक्शन 41 को इन्होंने क्या किया, कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसके अंदर इन्होंने क्या किया, उनके अंदर ये कहते हैं कि अब प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम की कोई चीज नहीं है। आईटीसी आपको अलाउड है, सेल्फ असेस बेसिस पर आप इसे अवेल करिए, एंड यू कैन टेक इट इनटू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इन्होंने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो आ गया, बाद में पता चला कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया था, रिसिपिएंट ने गलत ले लिया या नॉन कंप्लायंस से ले लिया। सो इन सबसेक्शन 2, जो सेक्शन 42 और 43 का कंसेप्ट था ना कि मैचिंग और मिसमैचिंग होनी चाहिए, उसको इन्होंने सबसेक्शन 2 में डाल दिया। सबसेक्शन 2 में ये क्या कहते हैं, अगर वो आपका जो सप्लायर है उसने जो आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करी है उससे मैच नहीं होगा, then you will need to reverse your input tax credit which you have availed as per the subsection 1, and you need to pay interest also. But when your supplier communicate to you in GSTR 1, then you can reclaim it. ये इन्होंने एक बढ़िया चीज कर दी, जब आप रिक्लेम कर लेंगे, इंटरेस्ट तो आप पहले दे चुके हैं ना रिवर्सल पे, वो इंटरेस्ट आपको रिफंड नहीं होगा। सेक्शन 47, सेक्शन 47 रिलेट करता है लेट फीस के साथ। जीएसटीआर 1 लेट फीस, जीएसटीआर 3 भी लेट फीस, और जीएसटीआर 2 लेट फीस। सेक्शन 52 ई कॉमर्स ऑपरेटर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न लेट फीस। तो सेक्शन 47 डील करता है लेट फीस के साथ, इसमें इन्होंने अमेंड कर दिया क्योंकि सेक्शन 38 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जीएसटीआर 2 खत्म, तो इनवर्ड और सेक्शन 38 लिखने में इनकी क्या जरूरत है, 48 में लिखा हुआ था, 47 में अगर आपने जीएसटीआर 2 फाइल नहीं किया सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग तो आपको लेट फीस लगेगी। जब फाइल ही नहीं करना तो लेट फीस किस बात की। सो दे हैव ओमिटेड और इनवर्ड एंड और सेक्शन 38, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहां पर ऐड कर दिया जो सेक्शन 52 के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिटर्न फाइल करनी होती है, उस पर भी इन्होंने लेट फीस का यहाँ प्रपोजल दे दिया था। ये मुझे ध्यान आ रहा है, वो रूल में था, सेक्शन में नहीं था, ये कहीं गलती हो रही थी, अब इन्होंने इसको सेक्शन में भी ऐड कर दिया। जहां जहां सेक्शन 38 लिखा हुआ था इन्होंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, बिकॉज दे हैव सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 38 इन सेक्शन 49। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत बढ़िया इन्होंने अमेंडमेंट किया है। सेक्शन 49 किसके रिलेशन में है, हमें टैक्स को यूज कहां करना है, कैसे यूज करना है, आउटपुट के लिए यूज करना है, पेनल्टी के लिए यूज करना है, टैक्स पेमेंट के लिए यूज करना है, हम कैसे करना है, कैश को कहां यूज करना है, क्रेडिट लेजर को कहां यूज करना है, वो हमारा सारा इन्होंने दे रखा। अब इसके अंदर देखिए कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 10। अब सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 किससे डील करता है, आप ध्यान करिए, पीएमटी 09। पीएमटी 09 में सर क्या हो रहा था, विद इन द सेम जीएसटीएन नंबर यू कैन ट्रांसफर योर integrated tax, central tax, state tax from one head. You can transfer from integrated tax to central tax. You can transfer from central tax to state tax. ये केवल कैश लेजर में हो रहा था। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस फैसिलिटी को दे दिया, if between the distinct person you can also transfer the integrated tax or central tax. Means if you have two different GSTN number in Haryana, suppose I have two GSTN number, GST number 1 A and GST number 2 means B. I can transfer cash which is held in the cash ledger from the
GST number A, if I have cash balance of IGST in GST number A, I can transfer it into GST number B. I can transfer between two GSTN number, but it should be between the same pen, because person should be distinct. और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन सा होता है? वही होता है जो सेम पेन में होता है, दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर अब SGST के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। इन क्लॉज बी, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 40(10) के अंदर ए वाला तो पहले से ही था, जो ये ए आपके सामने आ रहा है पहले से ही था, बी इन्होंने नया ऐड कर दिया। और ये स्टेट के बारे में जब हम स्टेट टैक्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर अभी CGST एक्ट पढ़ रहे हैं, सो यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रेटेड और सेंट्रल टैक्स की ही बात करी। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट रख लिया, नो ट्रांसफर शैल बी अलाउड if said registered person has any unpaid liability in his electronic liability ledger, then he will not to allow transfer amount from cash ledger from one GST number to another GST number. In section 49, after subsection 11, they have added a new subsection, subsection 12. आपको ध्यान होगा रूल 86B, रूल 86B किसके लिए था? रूल 86B था, if your outward taxable supply is more than 50 lakhs in a month, excluding exempt supply and zero rated supply, means you have a domestic supply of rupees 50 lakhs. In this case, you can utilize to the extent of 99% of input tax credit, and you need to pay 1% in cash. ये लॉ तो बना दिया था, सॉरी रूल तो बना दिया था, लेकिन इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। अब आपको पता है ना, रूल 36(4) उसकी भी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, 2A की कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, 2B की कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, इवन 3B की कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। गवर्नमेंट को जब पता चला कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन कोर्ट क्या करेगा, 36(4) खत्म, 2A खत्म, 2B खत्म, ये सारे खत्म हो जाएंगे, 3B खत्म। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट को समझ में आया, तो उन्होंने क्या प्रपोजल दिया है, उन्होंने प्रपोजल दिया है कि अब जो 86B था, जो केवल एक रूल था, अब उसको सबसेक्शन 12 का शैडो दे दिया गया है। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है जो 86B है, इसके अलावा और भी कंडीशन वो प्रेस्क्राइब कर सकती है। अभी तो 1% है, इसको 2% भी कर सकती है, 5% भी कर सकती है, इवन वो पर्सन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कौन से? एक सर्टेन कैटेगरी है, सपोज करिए आपके स्क्रैप डीलर हैं, उनको बोल सकते हैं कि आपके ऊपर सबसेक्शन 12 अप्लाई होगा, एंड यू विल नॉट अलाउड ITC ओवर एंड अबाउ 95%। हो सकता है, ये मेरा एक एजम्पशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा एक एजम्पशन है, गवर्नमेंट ऐसे पर्सन की कैटेगरी को स्पेसिफाई कर सकते हो, कुछ भी हो सकते हैं। क्लॉज 110 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022, सेक्शन 50, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में एक अमेंडमेंट आया था 1 सितंबर 2019 से आया था, 19 या 20 से आया, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, शायद 19 से आया था, नहीं 20 से आया था। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, जितना आपका कैश में पेमेंट होगा ना, नेट कैश पेमेंट होगा, आपको केवल उसी पे इंटरेस्ट पे करना है। और क्या कंडीशन लगा दिया था उन्होंने? कंडीशन ये लगा दिया था कि वो पेमेंट आपकी 73-74 के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए, और आपकी आउटपुट सप्लाई उसी पीरियड में डिक्लेयर होनी चाहिए जिस पीरियड की आउटपुट सप्लाई। अगर ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, देन इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन नेट टैक्स कैश पेमेंट। अब सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 इनका प्रपोजल है इसको अमेंडमेंट करने का 1 जुलाई 2017 से। और क्या प्रपोजल लेके आए? ये कहते हैं, पहले क्या लिखा था, पहले ये लिखा था अगर आपने कोई भी अनड्यू या एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, देन यू नीड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24%। और एक चीज और थी इसके अंदर, वो कौन सी कंडीशन थी? जब आपको अनड्यू और एक्सेस आपने ITC क्लेम कर लिया, दोज कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42(10), 43(10), ये वो वाली कंडीशन थी। अगर 42(10) और 43(10) एप्लीकेबल हो जाएगा तो आपको सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 अप्लाई होना था। अब 42 तो अप्लाई हो ही नहीं रहा था,
क्योंकि जीएसटीआर 1, 2, 3 का कंसेप्ट तो था ही नहीं, और वैसे भी अब 42 और 43 तो बचे ही नहीं ना, क्योंकि वो डिलीट कर दिए, ऑमिट कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 को भी पूरा अमेंड कर दिया। यहां पे क्या है, where input tax credit has been wrongly availed and utilized, अगर availed and utilized दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, then liability to pay interest may arise। अगर सिंगल है, आपने अवेल कर लिया बट यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट, देन यू नीड नॉट टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन इट। सपोज आपने एक इन्वर्ट सप्लाई ली 1 करोड़ की, 18 लाख आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कर दिया, 18 टैक्स आपने पे कर दिया और आप एलिजिबल नहीं हो उसका क्रेडिट लेने के लिए। सपोज आपने कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया, इट इज ब्लॉक क्रेडिट, और आपने वो ले लिया और आपने उसको यूज नहीं किया, डिपार्टमेंट से पास नोटिस आया, या इवन आप खुद भी करना चाहें तो क्योंकि आपने यूटिलाइज नहीं किया, देन इन दिस केस इंटरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। लेकिन आपने वो अगर यूटिलाइज कर लिया तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अवेल्ड एंड यूटिलाइज, देन इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन 52। नेक्स्ट अमेंडमेंट, क्लॉज नंबर 111 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022, सेक्शन 52। ये सेक्शन 52 किसका है? टीसीएस के लिए है। टीसीएस कलेक्शन करना होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, जिस तरह से जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट होता है, जीएसटीआर 3B में अमेंडमेंट होता है, उसी तरह से जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिटर्न है उसमें भी तो अमेंडमेंट होता है। उसकी ड्यू डेट को भी इन्होंने 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया। अब वो अमेंडमेंट जो पहले 39 में रिटर्न फाइल हो रही थी, वहां तक जो अमेंडमेंट होना था, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 39 में नहीं, जो सितंबर तक की ड्यू डेट, जो सितंबर मंथ के लिए रिटर्न की जो ड्यू डेट थी वहां तक अमेंडमेंट कर सकते थे। अब उसको उन्होंने क्या कर दिया, 30 नवंबर। इन सेक्शन 54, सेक्शन 54 डील्स विद द रिफंड ऑफ टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने जो किया, सबसेक्शन 1 बात कर रहा था कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट या एनी अदर अमाउंट जिसका रिफंड क्लेम करना है, उसके लिए इन्होंने टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखी है। लेकिन कैश का जो अमाउंट था ना, कैश लेजर में जो अमाउंट है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं कर रखी। और क्या प्रोविजन बनाया हुआ था कि अगर आपको कैश का रिफंड लेना है, कुछ नहीं करना, आप जब जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे आप उसमें अमाउंट डाल देंगे, आपको रिफंड मिल जाएगा। अब आप एक बात बताइए, ये जब लॉ बना था तो कंसेप्ट आया था जीएसटीआर 1, 2, 3 का, और 3 के अंदर कॉलम था कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं रिटर्न के अंदर। बट नाउ वी आर फर्निशिंग जीएसटीआर 3B and we all know that there is no column to claim refund in our GSTR 3B। अब इनको 4.5 साल के बाद अपनी गलती पता चली, जब जीएसटीआर 3B पे हम इतना टाइम काम कर चुके हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई लॉ में गलत लिखा हुआ है। प्रपोजल क्या है, वहां से द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 इन सच, ये डिलीट कर दिया और क्या लिख दिया, इन सच फॉर्म, क्योंकि फॉर्म में तो हम अप्लाई करते हैं। एक गलती थी, उसको करेक्शन कर लिया। इन केस ऑफ यूएनओ और सम स्पेसिफाइड एजेंसीज, सेक्शन 55 में उनको रिफंड मिलता था। अब सेक्शन 54 में क्या है, रिफंड कम मिलेगा और उसकी टाइम लिमिट बताई गई है। यूएनओ है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको क्या कर रखा है, जिस क्वार्टर में वो इनवर्ट सप्लाई लेंगे उस क्वार्टर की लास्ट डेट से 6 मंथ के अंदर उनको रिफंड अप्लाई करना होता है। उस 6 मंथ को एक्सटेंड करके 2 इयर्स कर दिया, उनको एडिशनल पीरियड दे दिया। नाउ दे कैन क्लेम रिफंड विद इन 2 years from the last day of quarter in which they have received the inward supply। इसके अंदर इन्होंने एक और अमेंड किया, सेक्शन 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 स्टार्ट होता है, वेयर एनी रिफंड सब्जेक्ट टू अंडर सबसेक्शन, सॉरी, वेयर एनी रिफंड क्लेम्ड अंडर सबसेक्शन, वेयर एनी रिफंड क्लेम अंडर सबसेक्शन 3, ये स्टार्टिंग में वहां पे लिखा हुआ है सबसेक्शन 10 में। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सबसेक्शन 3 के अंदर कोई रिफंड क्लेम हुआ
एप्लीकेशन आई और उस पर्सन के अगेंस्ट में कोई डिमांड है, तो जीएसटी ऑफिसर उस डिमांड को एडजस्ट करके रिफंड इशू कर देगा। ये कैश लेजर के रेस्पेक्ट में नहीं था। कैश लेजर का जो रिफंड था वो सबसेक्शन 1 से गवर्न हो रहा था और सबसेक्शन 3 से किसका था? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और जीरो रेटेड सप्लाई। अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड आप क्लेम करते हैं और आपकी कोई डिमांड है, तो असेसिंग ऑफिसर उसको एडजस्ट करके ही आपको रिफंड देगा। लेकिन अगर आप कैश का रिफंड ले रहे हैं आज की डेट में और कोई डिमांड खड़ी है, तो लॉ प्रोहिबिट नहीं करता इस बात के लिए कि आप रिफंड ना लें, और लॉ बिल्कुल भी नहीं कहता कि जीएसटी ऑफिसर को वो डिमांड एडजस्ट करनी है रिफंड देने से पहले। क्यों? क्योंकि कैश लेजर में तो हम अप्लाई करेंगे और हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा। अब इन्होंने देखा ये तो गलत है। अब इन्होंने क्या किया, वो जो अंडर सबसेक्शन 3 लिखा हुआ था कि आप केवल वही डिमांड को एडजस्ट करेंगे, वहां से उन्होंने जैसे इसको डिलीट कर दिया तो वहां वर्ड हो गया वेयर एनी रिफंड हैज बीन क्लेम्ड। पहले लिखा था वेयर एनी रिफंड क्लेम्ड अंडर सबसेक्शन 3, अब लिख दिया कोई भी रिफंड हो। तो कोई भी रिफंड में कैश का रिफंड भी आ गया, और उसकी कोई अगर डिमांड वहां पे लायबिलिटी रजिस्टर में दिख रही है तो जीएसटी ऑफिसर उसको एडजस्ट करने के बाद ही रिफंड देगा। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने एक नई चीज जोड़ दी जो पहले नहीं थी या थी, कई जगह कंफ्यूजन हो रहा था। इन केस ऑफ SEZ यूनिट, इफ इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर, अब चाहे आपको आउटपुट का टैक्स का रिफंड लेना हो या आपने LUT में एक्सपोर्ट किया है और आपको इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड लेना हो, तो उस केस में अब इन्होंने जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वहां से इन्होंने रेलेवेंट डेट की काउंटिंग स्टार्ट कर दी है, और इस केस में भी आपके 2 इयर्स का पीरियड आ गया जो पहले नहीं पता चल पा रहा। अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 168 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। हाँ, 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और है, वो मैं लेता हूँ। जीएसटी लॉ एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 से। तो इन्होंने क्या किया, जीएसटीएन पोर्टल को भी वहीं से इफेक्टिव कर दिया, लेकिन जीएसटी पोर्टल तो पहले ही पिक्चर में आ गया था, तो इनको अपनी गलती पता चली और उस गलती को ठीक करते हुए उन्होंने जिस डेट से वो जीएसटी पोर्टल इम्पैक्ट हुआ था, इफेक्टिव हुआ था, उस डेट से इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट करके उसको डाल दिया। एक इन्होंने क्या किया है, अगर फिश ऑयल निकलता है प्रोसेसिंग में तो आपका टैक्स लगेगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई दूसरी स्क्रैप निकलती है, आईजीएसटी का अमेंडमेंट है, तो आपका जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। और अल्कोहल लिकर के केस में हमें पता है कि जो उसकी लाइसेंस फीस होती है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ये मैंने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जो फिनांस बिल 2022 में आए थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब जीएसटी के रिलेशन में 2 और इंपॉर्टेंट हैं जो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर कोई रेस्टोरेंट है और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, हमने पढ़ लिया समझ लिया, हमें पता है नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द टैक्स एंड रेस्टोरेंट विल नॉट लायबल टू पे द टैक्स इफ ही सप्लाइड थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन क्वेश्चन आज की डेट में मेरे पास आज भी कई फोन आए, कल भी कई फोन आए, सर इसको जीएसटीआर 1 और 3B में दिखाना किसने है? Who will show this liability? Who will show this output supply? Whether e-commerce operator show this liability in his tax return, in his GST return, or restaurant will show this transaction in his GST return? मैं आपको ये बता दूं, जो रेस्टोरेंट है, सर्कुलर आया है इसका 167, सर्कुलर में क्या बताया गया है, रेस्टोरेंट इस सप्लाई को, कौन सी को, जो उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है, अपनी जीएसटीआर में शो करेगा। टेबल नंबर 8 में एग्जेम्प्ट सप्लाई और जीएसटीआर 3 में भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में शो करेगा। ये जो सर्कुलर है 167, इसमें ये बोला गया है, ये एक उन्होंने मैकेनिज्म निकाला है और ये टाइम बीइंग है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ नया अमेंडमेंट लेके आए वो विद रेस्पेक्ट टू दीज रेस्टोरेंट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन आपको जो जनवरी की रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 1 और 3B रेस्टोरेंट की, और उसकी जो सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हुई है, केवल उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपको टेबल नंबर 8 में एग्जेम्प्ट सप्लाई में दिखाना है जीएसटीआर 1 में, और 3B में भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में दिखाना है। इसके बाद जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपना
टैक्सेबल सप्लाई के अंदर दिखाएगा और टैक्स पे करेगा। अब यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को इस पे किसी भी टाइप का टीसीएस कलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि टीसीएस तो उन पे कलेक्ट होता है जो सप्लाई उसके थ्रू हो रही हो और टैक्स एक्चुअल सप्लायर लगा रहा हो, और ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कलेक्ट करके एक्चुअल सप्लायर को पेमेंट देता है, उन पर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। और यहां पर एक और अमेंडमेंट था जीएसटीआर 3B के रिलेशन में। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं जो जीएसटी के पोर्टल से लिए गए हैं। वो स्क्रीनशॉट क्या है, उसमें दिखाया गया है कि आपका परसेंटेज में इतना डिफरेंस आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मैं थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। जीएसटीआर 3B के अंदर इनका क्या प्रपोजल है, जो आने वाले टाइम में आ भी गया है, अभी आ भी गया है, जब आप इस महीने की जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे सर, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 उसमें यह बताया गया है कि आपने अगर कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड की सप्लाई नेक्स्ट टैक्स पीरियड में रिफ्लेक्ट कर दी, भले ही आपने क्रेडिट से टैक्स पे कर दिया हो, तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जब जीएसटीआर 3B फाइल होती है तो वहां पर तो कोई बाइफर्केशन आता नहीं है। अब इन्होंने क्या कर दिया, वहां पे एक नया टैब ऐड कर दिया। जब आप अपनी आउटपुट सप्लाई दिखाएंगे, उसमें टैक्सेबल वैल्यू टैक्स अमाउंट डालेंगे, तो आपसे पूछेगा ये कौन से टैक्स पीरियड की है। मान लीजिए आप फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 3B जनवरी की, और आप मान लीजिए जून 21 की कुछ दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको क्लिक करना पड़ेगा टैब प्रीवियस टैक्स पीरियड का, वहां पर जून 21 सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितना आपने टैक्सेबल सप्लाई दिखाई है उसमें से जैसे आप जून में डालेंगे, बाकी बैलेंस टैक्सेबल सप्लाई आपकी जनवरी के टैब में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। यह एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो मैंने कोशिश की यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो सकते थे, अमेंडमेंट और भी है लेकिन ऑलरेडी 350 हो चुके हैं। मुझे आपको जीएसटी, टैली प्राइम, इनको लिंक करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट आपको टैली प्राइम के फीचर्स भी बताने हैं, तो मैं आपको सीधा टैली प्राइम पे लेके चलता हूं और जीएसटी की बात करूंगा। देखिए, हम जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करते हैं ना। अभी तक मान लीजिए मैं फाइल कर रहा हूं, अभी मैंने माइग्रेट नहीं किया है और मैं टैली ईआरपी यूज कर रहा हूं। तो सर टैली ईआरपी में क्या होता है, जब हम रिटर्न बनाते हैं ना, तो हमें उसके लिए रेट वाइज अलग से डिटेल निकालनी पड़ती है, डेबिट क्रेडिट नोट की अलग से डिटेल निकालनी पड़ती है, परसेंटेज वाइज हमें डिटेल निकालनी पड़ती है। उसके बाद हम उसका जेसन बनाते हैं, जेसन बना के हम ऑफलाइन टूल को यूज करके जेसन बनाते हैं और उस जेसन को हम अपलोड कर देते हैं। जब हम अपलोड करते हैं ना, तो हमें पता लगता है इसमें तो एक HSN नंबर ही गलत है, हमें पता लगता है इसमें तो एक जीएसटी नंबर ही गलत है। सर सारी प्रोसेस हमें दोबारा करनी पड़ती है। अब काम एज ए टैक्स प्रोफेशनल आप भी कर रहे हो सकते हो और आपका आर्टिकल भी कर रहा हो सकता है। अब आपका आर्टिकल तो सोचा है, बॉस ने जो टाइम काम बता दिया मुझे तो करना है ना, मुझे तो 9 से 5 अपना टाइम पूरा करना है, स्टाइफंड लेना है या मुझे ट्रेनिंग कोचिंग लेनी है, मैं कर लूंगा। वो आपको बताता नहीं है, वो लगा रहता है एक काम में से। और कई बार क्या होता है, जब लास्ट डेट आ जाती है ना, आपको भी गुस्सा आता है, भैया आप कुछ काम नहीं करते, ठीक है मैं ही काम कर लूंगा। सर काम बहुत सफर करता है इससे। सर इस फीचर्स के लिए ना मैं कहूंगा आपसे, आप सर टैली प्राइम में माइग्रेट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस तो सर रिन्यूअल पे देते ही है ना हम लोग। जब आप टैली प्राइम को वो रिन्यू कराएंगे तो सर वो अपने आप ही सॉरी जब टैली ईआरपी को आप रिन्यू कराएंगे तो टैली प्राइम में ही वो माइग्रेट होगा सर, टैली प्राइम में ही वो अपडेट होगा। और आपको करना कुछ नहीं है, आप टैली ईआरपी यूज करते हैं 9, आपने टैली सॉल्यूशंस लिमिटेड की वेबसाइट पे जाना है, EXE फाइल डाउनलोड करनी है, उसको अपने सिस्टम में रन करना है। जैसे सिस्टम में रन करेंगे टैली प्राइम इंस्टॉल, उसके बाद क्या होगा सर, आपका जो डेटा है वो टैली प्राइम की डायरेक्टरी में डाल दीजिए। जब आप रन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपसे कहेगा आप सेव कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो डिलीट हो जाए, और कुछ सेकंडों में आपका डेटा माइग्रेट हो जाएगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका क्लाइंट तो टैली प्राइम यूज नहीं करता, ERP यूज करता है, और आप आगे टैली प्राइम में क्या करेंगे। कोई सुनिए सर, आप अगर टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो आप टैली ERP भी यूज कर सकते हैं, और आपने उसका डेटा टैली प्राइम में कन्वर्ट कर दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप उसको कह सकते हैं भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, आप भी इसको माइग्रेट कर लीजिए, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो यहां पर हुआ क्या, एक तो आपका डाटा माइग्रेट हो गया, नया सॉफ्टवेयर आ गया, और जो आपका आर्टिकल पूरे दिन लगा रहता था ना सर,
वो बार बार HSN कोड की और बार बार GSTN नंबर की गलती आती थी, और डेबिट क्रेडिट नोट और परसेंटेज और ऑफलाइन टूल और कभी नेट नहीं चलना, स्लो होना, सर वो सब खत्म। क्यों खत्म? सर अब आपके पास टैली प्राइम है, सिंगल क्लिक पे आपका जेसन जनरेट होती है एरर फ्री, और आपको यहीं पे लिंक दे रखा है, यहीं से लिंक करके आप यहीं से अपलोड कर सकते हैं सर। आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। वो जो आपको बाद में पता लगती थी ना सर, ऐसा होता है ना, अगर आपका ऑफिस टाइम 5 बजे है, आप जॉब करते हैं, आपका आर्टिकल जॉब करता है, और आप उसे 5 बजे काम दे दो ना, बड़ा गुस्सा आता है। क्यों आता है? कि पूरे दिन तो हम इतनी मेहनत करते रहे और 5 बजे आप कहते हो काम करिए। सर इसी तरह से जब मैं GSTR 1 और 3 भी फाइल करता हूँ और मुझे पता लगता है ना 1 में कि GSTN नंबर गलत है, लास्ट मोमेंट आ गया, सारी प्रोसेस मुझे दोबारा करना पड़े, बड़ा गुस्सा आता है। तो हैसल्स फ्री सर टैली प्राइम यूज करिए। अब मैंने कहा एरर फ्री, एरर फ्री के लिए करना क्या है सर? आपको वेरीफाई करना पड़ेगा GST नंबर, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा HSN कोड। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप कैसे उनको वेरीफाई कर सकते हैं सर। देखिए इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपका जो डेटा है टैली प्राइम में आ चुका है। टैली प्राइम में आने के बाद में, अच्छा उससे चल ठीक है, मैं वेरिफिकेशन से ही आपको बताऊंगा। जब मैं आपको वेरिफिकेशन से स्टार्ट करता हूं तो मुझे क्या देखना होता है कि मेरे सारे के सारे एक जगह क्या GST नंबर मिल सकते हैं, क्या मेरे सारे HSN कोड एक जगह मिल सकते हैं? अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि कौन सी टेबल होगी, कौन सी स्टेटमेंट होगी। मेरे पास तो 1 लाख पार्टी है, सारी पार्टीज अलग अलग है। क्या मैं सन्डी डेटर की लिस्ट में चला जाऊं, मुझे वहां सारा एक साथ मिल जाएगा? पता चला मैंने बैंक भी सन्डी डेटर्स में खोल रखा है, गलती से किसी आर्टिकल ने कोई सस्पेंस का अकाउंट है वो भी सन्डी डेटर्स में खोल रखा है, क्रेडिटर्स में भी खोल रखा हो सकता है। सर मेरे GSTN नंबर तो डेटर में भी मिल सकते हैं, क्रेडिटर में भी मिल सकते हैं, कहीं मिल सकते हैं। हो सकता है मैंने किसी को लोन एडवांस में वहां खोल दिया हो, मेरे पास एडवांस आ गया हो, डेटर क्रेडिटर में नहीं खोला हो। तो इसके लिए सर मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि मेरे पड़े कहाँ पे हैं, वो कौन सी जगह है जहां पर मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इसके लिए देखिए आपको सामने ना एक बीचों बीच में कमांड आ रही है, गो टू। पहले गो टू के बारे में बताऊंगा, फिर आपको जो मैं एरर फ्री GSTR 1 की बात कर रहा हूं उसमें आपको GST नंबर HSN कहां पे वैलिडेट करने हैं वो भी बताऊंगा। सर ये गो टू क्या है? आप बीच में नया कंसेप्ट मैंने डाल दिया आपके दिमाग में, सर गो टू क्या है? कोई बात नहीं, जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ना गूगल में, हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए, हम डालते हैं व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ ड्यू, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। हमारे सामने सर लाखों करोड़ों पेज खुल जाते और पता ही नहीं चलता कि सही कौन सा है। फिर हम क्या करते हैं, फोन करते हैं कि सर बताना कि असेसमेंट ईयर 21 22 में डेप्रिसिएशन का रेट क्या था, कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है। फिर हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप भी चेक कर लेते हैं, गूगल भी चेक कर लेते हैं, फिर बुक भी पढ़ लेते हैं, अल्टीमेट पता नहीं चल पाता। हम ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाते हैं उस केस में। सर कुछ ऐसा ही आप गो टू इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। आपके सामने देखिए, जब मैं गूगल पे जाता हूँ एक इंफॉर्मेशन चाहिए 1 लाख आती है मेरे पास में, जब मैं गो टू में गया तो गो टू में सर कुछ एक रिपोर्ट्स आ रही है आपके सामने। अगर मैं काउंट करूंगा तो सर 18-20 रिपोर्ट होंगी। क्या सिर्फ इतनी ही रिपोर्ट है इसमें? नहीं, आप ये देखिए अभी आपके सामने 18-20 है और नीचे कोई भी नंबर लिखा नजर नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे क्या किया सर, शो मोर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ये शो मोर पे क्लिक किया ना सर, आप ये देखिए शो मोर पे क्लिक करते ही सर नीचे आपको दिख रहा है कुछ डिम 2 लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है सर। इसका मतलब ये रिपोर्ट जो 18-20 थी वो तो बढ़ी गई सर, और भी बढ़ गई। और देखता हूं सर मैं क्या करता हूं, शो इनएक्टिव पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं शो इनएक्टिव किया सर, ये देखिए नीचे 22 हो गया। आप देख रहे हैं सर, मेरी रिपोर्ट के नंबर बढ़ गए सर। अब सर ये मेरे को करीब करीब 50 के करीब रिपोर्ट्स नजर आने लगी। क्या इतनी रिपोर्ट है? नहीं, क्योंकि गूगल में मुझे क्या पता कितने पेज हैं। हम तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे मैक्सिमम 10th तो सर बहुत दूर है। हम तो पहले दूसरे तीसरे पेज पे रुक जाते हैं, दूसरे पे भी नहीं जाने की कोशिश करते सर। फर्स्ट पे ही जो पहली दूसरी वेबसाइट आती है उसी पे चले जाते हैं। लेकिन जाइए ना सर, ये भी तो गूगल ही है। मैं यहाँ पे क्या किया सर, मैंने 22 है ना, अब मैंने क्या किया, एक्सपेंड ऑल पे गया। सर आप देखिए एक्सपेंड ऑल पे जाके 370 रिपोर्ट्स आपके सामने आ गई सर, 370। सर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि टैली प्राइम आपको इतनी रिपोर्ट दे रहा है? आपने तो सर माइग्रेट ही नहीं किया ना, तो आपको पता कैसे चलेगा? आपने तो GSTR 1 और 3B से बना ही नहीं ना, आपको पता कैसे चलेगा? तो सर आप माइग्रेट करिए और देखिए, मैं सर क्लिक कर रखा है, ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है सर, चलता जा रहा है। अभी देखिए सर यहाँ पे जो नीचे आपका डिम दिख रहा था ना, अब ऊपर 370 आ गया, 30 रिपोर्ट आपके सामने है सर।
अब आप कोई भी विजुलाइज करिए सर। कोई एक मैं मान लीजिए मैं कोई नेगेटिव लिखता हूँ, मैंने लिखा नेगेटिव नहीं लिखता, मैं पेरोल लिखता हूँ सर, PAY मैंने लिखा। जैसे मैंने PAY लिखा ना, मुझे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता होना चाहिए मेरे कुछ लेटर्स पता होने चाहिए। अब देखिए जैसे मैंने पे लिखा, मेरा इंटेंशन था पेरोल का। सर ये देखिए कुछ कुछ आ रहा है, ये पेरोल रजिस्टर आ गया, ये पेरोल स्टेटमेंट। मान लीजिए मैं नेगेटिव डालता हूँ, 1 मिनट के लिए मैंने नेगेटिव डाला, नेगेटिव आ गया सर, नेगेटिव लेजर समरी, नेगेटिव बैचेस, नेगेटिव स्टॉक, ये रिपोर्ट आ गई सर। सर मान लीजिए मैंने फिक्स सेट डाला 1 मिनट के लिए सर, जैसे ही मैंने F डाला तो यहाँ पर फिक्स सेट्स आ गई। अब सर देखिए यहाँ पर आ रहा है फिक्स सेट्स एनालिसिस भी आ रहा है, फिक्स सेट्स एनालिसिस, फिक्स सेट एनालिसिस, ये वो वाले हैं जो हम बैलेंस शीट और 3B जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम डेप्रिसिएशन वगैरह देखते हैं ना, वो तो है ही है, उसके अलावा नई चीजें हैं सर ये। अब मैं आपके सामने क्या डालूं, मान लीजिए मैंने 1 मिनट के लिए 1 मिनट मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ सर ड्यू, मैंने मेरे दिमाग में आया ड्यू डालना चाहिए, तो सर सारी चीज आ गई, रिसीवेबल ड्यू, पेएबल ड्यू, ड्यू टू व्हाट, जहां ओवर ड्यू रिसीवेबल हमें निकालना होता है ना सर, बैंक के लिए देते हैं हम सर्टिफाई करके, लेस देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज, ये पहले भी था, ऐसी बात नहीं है पहले नहीं था, लेकिन सर हमें पता ही नहीं चलता था, हमें जाके ढूंढना पड़ता था सर उसको। आप याद करिए, हम जाते थे रिसीवेबल्स में जाते थे, डेटर्स में जाते थे, वहां पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस में जाते थे, वहां से हमें पता लगता था सर। अब यहाँ पर मुझे कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ड्यू लिखना है और मुझे पता लग जाएगा क्या क्या ड्यू यहाँ पे है। तो सर गो टू इतना बढ़िया फीचर दे रखा है, किसके अंदर, टैली प्राइम में, बहुत बढ़िया फीचर है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं सर, आपको टैली प्राइम में आना चाहिए और इस फीचर को यूज करना चाहिए। अब मैं आपको बात बता रहा था कि क्या मैं यहां से जीएसटीएन की इंफॉर्मेशन देख सकता हूं, मुझे कौन सा वैलिडेट करने हैं, क्योंकि मैं तो टैली ईआरपी यूज कर रहा हूं ना, और मुझे तो पता ही नहीं चलता वैलिडेट कैसे करने। मैं तो क्या करता हूं सर, आज की डेट में अगर आपको दिखाई दे रहा हो सर, मैं तो क्या करता हूं सर, मैं जीएसटी की वेबसाइट पे गया, और जीएसटी की वेबसाइट पे जाने के बाद में सर्च टैक्स पेयर में गया, सर्च बाय सॉरी यहाँ पे गया सर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसका जीएसटी नंबर डालूंगा, यहाँ पे है जीएसटीएन, और यहाँ एक एक करके चेक करूंगा सर, बस आपका काम तो हो गया ना। अगर मान लीजिए 1000 आपके वो है पार्टी लिस्ट, सर आप अपने आर्टिकल को लगा देंगे, करता रहेगा सर। इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन हुआ क्या सर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अब आपको टैली प्राइम में बताता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे डाला जीएसटी, मैंने अभी केवल जीएसटी डाला, तो मेरे सामने जीएसटी के रिलेशन में कुछ इंफॉर्मेशन आ गई, GSTR1, GSTR2B, GSTR3B, GST एनुअल कंप्यूटेशन, GST चालान रिकंसिलेशन, GST रेट सेटअप, अपडेट पार्टी GST। अभी आप इसको ध्यान में रखना सर, अपडेट पार्टी GSTN। अब मैं आपको एक दूसरी कमांड पे लेके चल रहा हूँ, मैं दूसरी वाली कमांड पे लेके चल रहा हूँ सर। मैं क्या करता हूँ, मुझे इंडिविजुअली मान लीजिए सिर्फ एक पार्टी का चेक करना है, तो एक पार्टी का चेक करने के लिए क्या है सर, मैं पार्टी के मास्टर डाटा में जाऊंगा, जो मैंने डाटा क्रिएटर खोले हुए, मैंने उस पर क्लिक किया सर। मान लीजिए मैं कोई एक लेजर खोल लेता हूँ, ये सेकंड नंबर का है, मान लेते हैं एक्केम एजेंसी, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मैं इस तरह से सर मैंने मास्टर डाटा जनरेट कर रखा है। जैसे मैंने मास्टर डाटा जनरेट कर रखा है, इसमें मैंने बता दिया भाई डेटर्स है, मेंटेन बिल, बाय बिल, फलाना ढिमकाना, जो भी सर कुछ है, और उसके बाद एड्रेस आ गया, और यहाँ पे जीएसटी नंबर। आप भी टैली प्राइम ओपन कर सकते हैं सर, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अभी आपसे होगा नहीं है, उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों नहीं होगा और आपको करना कैसे है। तो ये जीएसटी नंबर है सर, यहाँ पे कमांड दे रखी है गेट जीएसटीआईएन यूआईएन इंफॉर्मेशन, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, वो मुझे क्या करता है, डू यू वांट टू गेट जीएसटीएन नंबर डिटेल फॉर दिस जीएसटीएन नंबर। अब सर ये मेरे को डायरेक्ट लिंक करने की कोशिश कर रहा है, कहां से, जीएसटीएन पोर्टल से। मैं कहूंगा यस, जैसे ही मैंने यस बोला ना, इसने मुझसे कहा आईडी और पासवर्ड दो। आपसे भी बोला होगा अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो। अब सर इसके लिए आपको करना क्या होगा, यूजर आईडी पासवर्ड लेने के लिए आपको इतना करना होगा, सबसे पहले आप ई वे बिल की वेबसाइट पे जाएंगे, ई वे बिल की वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पे आप लॉगिन करेंगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की, अगर मैं दिखा पाया 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, मैं देखता हूँ सर अगर ये मेरा लग जाएगा यूजर नेम, तो सर मैंने यूजर नेम यहाँ पे डाला 6543321, नहीं सॉरी 6543321,
कोड मेरा है ये A4L3 यस, थैंक गॉड हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी लॉगिन हो जाएगा। तो ये क्या है, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज करिए, अदरवाइज नहीं करना, अपने एग्जिट कर दीजिए यहाँ से। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे ना, तो आप यहाँ पे जाएंगे सर रजिस्ट्रेशन में, और आपको जाना है जीएसपी में। अब जीएसपी में जाने के लिए अब सर यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऑलरेडी मैंने जीएसपी सिलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही मेरा उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड जो ये मोबाइल नंबर डाला हुआ है, इस पे ओटीपी जाएगा। एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को ओटीपी मिल जाए तो मैं एक्चुअली आपको लाइव दिखाना चाह रहा था, मतलब होगा क्या सर मैं बता देता हूँ शायद। एक मिनट, विदित है क्या, तो उसको बोलना जरा गवर्नमेंट इस चीज की वेबसाइट खोले और उस पर ओटीपी आएगा, मुझे बताएं। मैं एक मिनट आपको लाइव दिखाना चाह रहा हूँ सर यहाँ पे। मैंने क्या किया सर, यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया। जैसे सेंड ओटीपी पे, तो सर आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, अभी मैं मेल खुलवा रहा हूँ उनकी। बस सर मैं वैसे प्रोसेस बता देता हूँ इतने, जब तक मेरे पास ओटीपी आता है। होगा ये, मैं इसमें लॉगिन कर जाऊंगा सर। लॉगिन करने के बाद में एक ओटीपी आया होगा, जरा ओटीपी बताना गवर्नमेंट चीज पे। तो इसमें क्या होगा सर, मैं लॉगिन कर जाऊंगा। लॉगिन करने के बाद में वो क्या करेगा, मुझे जितने भी जीएसपी हैं उनकी एक लिस्ट दिखाएगा। तो उसमें जो मुझे टैली सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड है या टैली सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, मुझे ये शायद टैली सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड है, उस पर क्लिक करना है और वो मेरा जीएसपी सिलेक्ट हो गया। जब मेरा जीएसपी सिलेक्ट हो गया तो वो मुझसे कहेगा अब आप अपना एक आईडी बनाइए और एक पासवर्ड बनाइए। जब आप अपना आईडी और पासवर्ड बनाएंगे तो कुछ लेटर वहां पे प्रीफिक्स होंगे, आपको सफिक्स मतलब बाद में 3 या 4 लेटर आपको डालेंगे। जैसे आप वो लेटर डालेंगे तो वो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आप एक टाइम में एक से ज्यादा जीएसपी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप एक ही करें। आया ओटीपी, भेज दिया, बताओ 456591। मैंने ये ओटीपी, यस ओटीपी वेरीफाई किया। अभी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या है जी, यहाँ पे ऑलरेडी टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी जीएसपी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे ऐड न्यू करना है, मैंने ऐड न्यू किया तो उसने मुझे जितने भी जीएसपी थे सबका नाम दिखा दिया। यहाँ पे जो भी जीएसपी है आपका, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, हमें सीधा सीधा टैली को ढूंढना है। सॉरी, ये टैली ऑलरेडी है। अभी देखिए मैं कह रहा हूँ ना, पहले से कुछ प्रीफिक्स है, ये यूजर नेम में प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। पहले इन्होंने यूजर नेम बोला, फिर री एंटर करने के लिए यूजर नेम बोला, फिर आपने पासवर्ड सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको री एंटर करने के लिए बोला, फिर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तो सर क्या होगा, आपका ये यूजर आईडी पासवर्ड बन गया। जब ये यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा ना, अब मैं 1 मिनट के लिए यहाँ से आपको लॉग आउट कर रहा हूँ, मैंने ये लॉग आउट कर दिया। जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा और सर आप टैली पे आओगे ना, तो जो यूजर आईडी पासवर्ड वहां पे आपने बनाया वो डालेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं 1 मिनट डालता हूँ सर इसको, GAUR654_API_123 पासवर्ड है सर। देखते हैं सर, यस थैंक गॉड ले लिया। अब सर क्या हुआ, इसने डायरेक्ट लिंक कर दिया सर, कहां से, जीएसटीएन पोर्टल से। और ये इसने वेरीफाई करके इंफॉर्मेशन दे दी कि एक्ट इमरजेंसी योर एड्रेस एज पर द जीएसटीएन रिकॉर्ड D12 फरीदाबाद, देयर इज नो स्पेस बिटवीन D12 एंड फरीदाबाद, 121 नेहरू ग्राउंड, एंड आई हैव रिटन हियर एड्रेस इज D12 नेहरू ग्राउंड फरीदाबाद फरीदाबाद। This number is regular, activate as regard the e-waybill, it is unblocked। ये मैंने, हाँ अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और बताता हूँ आपको। अब मैं दूसरे वाले में चलता हूँ, मैंने अभी आपको एक चेक कराया, मान लीजिए मैंने एक वो फर्म का नाम ले लिया, यहाँ पे सैंड मार्क एंड एसोसिएट्स, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया, मैं दोबारा यहाँ पे गेट जीएसटीएन डिटेल कर रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, वो अगेन मेरे से पूछेगा यस। अब क्या ये मेरे से पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड दोबारा पूछेगा? नहीं, दोबारा नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? एक बार आपने डाल दिया वो 6 घंटे तक आपका वैलिडेट रहेगा, आपको दोबारा से यूजर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इस फर्म का इसने वैलिडेट कर दिया।
ये तो आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। आप क्या इकट्ठा भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। आपको कुछ नहीं करना, आप यहीं पे जाएंगे गो टू में, आपको गो टू को कहीं नहीं छेड़ना, अपडेट पार्टी जीएसटीएन आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने अपडेट पार्टी जीएसटीएन पे क्लिक किया, आप सिलेक्ट कर लीजिए ऑल आइटम्स, तो आपने सिलेक्ट कर ही लिया है। उसके बाद में सॉरी आप क्या करेंगे, आपने डेटर्स को मान लीजिए सिलेक्ट कर, डेटर पे मैंने क्लिक किया। अब वो पूछते हैं कौन से, इतने सारे डेटर है ना, मैंने कहा ऑल आइटम कर दिया। मैं गया जीएसटीएन पे, एक मिनट सर आए तो नहीं, यहाँ पे मैं गया जीएसटीएन में, मुझे लग रहा है मैं कहीं कमांड देने में कोई गलती कर रहा हूँ। नेम ऑफ द ग्रुप आ गया डेटर्स, उसके बाद मैंने कर दिया ऑल आइटम, यस है ना, तो यहीं से चाहिए था ऑल लेजर्स, यस ऑल लेजर्स आ गया। और ऑल लेजर के बाद में मैंने क्या किया सर, गेट जीएसटीएन डिटेल किया। अब गेट जीएसटीएन डिटेल जैसे ही मैंने किया, ये मेरे से अगेन पूछता है आपको सभी जीएसटीएन वेरीफाई करने हैं, मैंने कहा यस। तो सर इस पे मैंने क्लिक किया, अब दोबारा मेरे से यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पूछेगा। सर ये देखिए 35 है, और कितना फास्ट कर रहा है सर ये, और सर ये इसने सारा हमारे सामने करके दे दिया। क्या करके दे दिया, 35 को इसने वेरीफाई कर लिया। और ये सर लाइव कर रहा हूं मैं आपके सामने ऑनलाइन, ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है सर, ये मैंने इसको लाइव किया है। और यहाँ पे सर इसने अब देखिए सारा बता दिया। अब देखिए इसने ये नहीं किया, ये कहता नॉट सेंट। अब नॉट सेंट क्यों नहीं किया देख लेते हैं। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका हमने जीएसटी नंबर ही नहीं दे रखा। जब जीएसटी नंबर नहीं दे रखा तो वेरीफाई कहां से करेगा ये। इसी तरह से दूसरा भी कोई और भी इंफॉर्मेशन होगी, इसने एक की नहीं भेजी। अब एक मिनट के लिए दोबारा मैं आपको चेक करा देता हूँ। अभी तो मैंने आपको डेटर्स चेक कराया था, अब एक बार क्रेडिटर्स को भी चेक कर लेते हैं। ये मेरा क्रेडिटर है सर, ऑल आइटम किया मैंने, और इसको यहाँ पे जाके वेरीफाई किया ऑल जीएसटीएन में, मैंने क्लिक कर दिया। वो कहता है सभी वेरीफाई करना है, यस। अब सर ये देखिए 30 आपके टोटल जीएसटीएन मैंने बताया 30 ट्रांजेक्शन पार्टीज है, और इसने सबको वेरीफाई कर लिया। ये आगे सर यहाँ, अब ये देखिए यहाँ पे नॉट सेंट 4 आ गए। अब ये इसलिए आ गए ना क्योंकि ये भी अनरजिस्टर्ड है, ये भी अनरजिस्टर्ड है, ये भी अनरजिस्टर्ड है, और नीचे भी अनरजिस्टर्ड है। इनकी इन्फॉर्मेशन गई नहीं तो वेरीफाई कहां से करेगा। तो इस तरह से जब आप टैली प्राइम यूज करेंगे और अपना जेसन बनाएंगे, तो आपको इस तरह से पहले ही वेरीफाई कर लेना है ना। आप ये पहले ही वेरीफाई कर लेंगे। क्या वेरीफाई कर लेंगे, आप जीएसटी नंबर वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे। और आपको केवल एक बार यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे लगाना है जो 6 घंटे तक वैलिड रहेगा। अब एक तो मैंने आपको बता दिया, आपको जीएसटीएन वेरीफाई करना है। दूसरा आपको एचएसएन भी तो वेरीफाई करना होता है। एचएसएन लिखा मैंने एचएसएन लिखा यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आपका एक टैब आ रहा है सर, एचएसएन ये मेरे को जो एचएसएन मिलेगा कहाँ यूज होना है सर, जीएसटी रिटर्न में तो यूज होना है। तो जीएसटी रिपोर्ट के अंदर ये टैब दे रखे हैं। मैं यहां से भी जा सकता हूँ गो टू से, और सर मैं यहां से भी जा सकता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। इसमें सर ये आपका आ गया जीएसटी रेट सेटअप, यहां से भी जा सकता हूँ मैं, और मैं गो टू से भी जा सकता हूँ। गो टू से जीएसटी रेट सेटअप, मैं यहां से भी जा सकता हूँ, कहीं से भी जा सकता हूँ। अब सर इन्होंने क्या बताया कि ये आपके पास में इतने सारे आइटम, मैं इसका 1 बाय 1 भी चेक कर सकता हूं, और मैं इसका कंबाइंड भी चेक कर सकता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि जो ये एचएसएन में यूज कर रहा हूं, कौन से वाले 352828 ये वैलिड है कि नहीं है। ये नहीं बताएगा कि आपका एचएसएन होना कौन सा चाहिए, ये सिर्फ ये बताएगा कि आप जो एचएसएन यूज कर रहे हो वो वैलिड है कि नहीं है। क्या करना है, बहुत सिंपल है सर मुझे यहाँ पे जाना है गेट जीएस एचएसएन, इस पे सर मैं क्लिक करूंगा, वो मुझसे डायरेक्ट लिंक कर रहा है। मैंने यस किया। अब देखिए 18 आइटम इसने ले लिए और उसमें वेरीफाई कर दिया, और वेरीफाई करने के बाद वो कहता है कि भैया मैंने सारे वेरीफाई कर लिए हैं, लेकिन आपका एक इनवैलिड है, आपका एक इनवैलिड है, और वो इनवैलिड इसने निकाल के बता दिया। एचएसएन हम यूज कर रहे हैं, अब एचएसएन कौन सा होना चाहिए इसने ये नहीं बताया, ये बता दिया इनवैलिड। अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखिए, क्या देखने को मिलेगा सर आपको इसमें, इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलेगी कि मैंने डिफरेंट नेम यूज कर रखे हैं सेम एचएसएन के लिए। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये पहला वाला बीएफ बूस्टर,
3505। उसके बाद मैंने क्या कर दिया सर, मैं अगर पहली 4 डिजिट की बात कर रहा हूँ, कोरिगेशन गम 3505। इसके बाद सर पेस्टिंग गम 3505, पेस्टिंग गम पाउडर 3505। आप ऊपर देखिए बीएफ बूस्टर 3505 1090 है, 3505 1090 है, और यहाँ पर भी तो यही है, पेस्टिंग गम पाउडर 3505 1090। मतलब कि नेम अलग है, एचएसएन सेम है। और जब आप इसका टेक्निकल नेम देखेंगे जो इसने वेबसाइट से उठाया है टैरिफ से, तो वो यहाँ पे क्या है सर, वहां पे क्या दे रखा है, डेक्सट्राइन नेम, और यहाँ पर भी सर डेक्सट्राइन नेम आ रहा है, यहाँ पर भी डेक्सट्राइन नेम आ रहा है जहां 3505 है। तो आप इसे ये भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आपका जो आपने क्वांटिटेटिव डिटेल के अंदर प्रोडक्ट का नाम दिया होगा ना, आप इससे उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, आप उसका नाम करेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ सर, आपकी जीएसटीएन की सारी गलती और आपकी एचएसएन कोड की सारी गलती पहले ही पता लग गई ना। तो जब आप 5 बजे अब आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ऑलरेडी फाइल है, आपको सिंगल क्लिक करना है और अपलोड कर देना है, आपका एआरएन जनरेट हो जाएगा। और जो आपका आर्टिकल है ना, वो भी अब आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से सर्व कर पाएगा, आपको ज्यादा बढ़िया टाइम देगा, क्वालिटी टाइम मिलेगा उसको भी पढ़ने का, और आपके काम का भी, और नई चीजें भी आपको मिलेंगी। ये तो मैंने आपको क्या हुआ सर, देखिए मैंने आपको बताई तो एक चीज है, लेकिन मैंने आपको 3 कमांड बता दी सर। एक मैंने आपको गो टू की कमांड बता दी, एक मैंने आपको एचएसएन वैलिडेशन की कमांड बता दी, और एक मैंने आपको जीएसटीएन नंबर वैलिडेशन की कमांड बता दी। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और एज ए ऑडिटर सर मैं इतना उससे खुश हूं ना, उससे मतलब जो इन्होंने एक नई कमांड दी है, मैं मान के चलता हूं सर मेरा उससे ना 20% का टाइम सेव होने लगा। आपका भी होगा, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मेरा टाइम सेव हो रहा है। मैं बताता हूँ सर क्या सर, अभी तक क्या होता है, जब हम ऑडिट करते हैं ना, तो हमें क्या है सर, कई बार ट्रायल बैलेंस देखना होता है, कई बार स्टॉक समरी देखनी होती है, कई बार हमें लोन का बैलेंस देखना होता है। हमें पता लगता है मान लीजिए कोई स्टॉक नेगेटिव तो नहीं आ रहा। जब स्टॉक नेगेटिव नहीं आ रहा तो सर मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, मैं स्टॉक समरी में गया, स्टॉक समरी में देखूंगा ये तो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, तो मुझे कमांड यूज करनी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन की, शो क्वांटिटी यस, अल्टरनेट यूनिट नो, ओपनिंग बैलेंस यस, इनवर्ड यस और आउटवर्ड यस, और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ इन ईच एंड एवरीथिंग। इस तरह से मेरे सामने आ जाता है, और मैं देखता हूँ कि कहीं कोई माइनस की फिगर तो नहीं आ रही, तो किस तरफ क्लोजिंग बैलेंस है मुझे थोड़ी पता लगेगा। और अगर आप क्लोजिंग बैलेंस से पता करना चाहें तो सर फिर आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा। जैसे ये बोरेक्स पाउडर आया, आप इसमें गए, आपने देखा सिर्फ यहाँ तो आपका केवल और केवल ओपनिंग बैलेंस है, फिर आपने नई कमांड बता रहा हूँ सर, प्लस आपने इंसर्ट कर दिया, प्लस प्रेस कर दिया ना प्लस, तो आप अगले वाले लेजर पे चले जाएंगे। मैं प्लस प्रेस करता जा रहा हूँ, अभी ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें अभी कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है सर। ठीक है सर, तो ये क्या है, मैंने सारे के सारे चेक किए, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर, ये तो मेरे अभी 10-12 ही है, ये 1000 लेजर भी तो हो सकते हैं, 1 लाख लेजर भी तो हो सकते हैं सर। ये उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे फिर F12 करना पड़ेगा, और मैं ओपनिंग बैलेंस यस, इनवर्ड यस और क्लोजिंग यस ये सारा करूंगा। फिर सर मेरे सामने ऐसा ट्रांजेक्शन आ जाएगा। मुझे लग रहा है ये एक्चुअली इसलिए नहीं आया सर, क्योंकि मैंने वो पीरियड ना गलत सिलेक्ट कर लिया था। ये 21-22 का ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें 20-21 का कोई नहीं है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ना, ये 1% ताकि आपको सही से डेटा दिख जाए। मैंने आपको दिखा रहा था कि मैं स्टॉक समरी में गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब देखिए अब ट्रांजेक्शन आ गया, क्योंकि मैंने वो गलती से 20-21 कर लिया था, 20-21 में कोई ट्रांजेक्शन था नहीं। तो अब सर मुझे क्या है, हर लेजर में जाके चेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस तो नहीं है। और जब मैं जाता हूँ तो बार बार वो ओपनिंग और इनवर्ड और आउटवर्ड गायब हो जाता है, क्लोजिंग रहता है। अब मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे ही सर मैं जाता हूँ ट्रायल पे, जब मैं ट्रायल पे जाता हूँ तो ट्रायल में भी मेरे को क्लोजिंग मिलता है। अब मुझे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, ओपनिंग और ट्रांजैक्शन इन सब में यस करूंगा तो मेरे को डिटेल दिखने लगेगा सर। उसके बाद पता चला मुझे तो यहाँ से नहीं देखना, मुझे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, और बाद में फिर मुझे क्या है, ट्रायल पे जाना है, ट्रायल फिर ऐसा दिखता है सर, फिर मुझे F12 करना पड़ता है, बड़ा गुस्सा आता है। अब इसका फायदे वाली चीज मैं बता देता हूँ सर आपको। अब आप यहाँ पे ट्रायल पे हैं, और आपने ट्रायल को हमेशा ऐसे ही रखना है, ओपनिंग
डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग। आपको कुछ नहीं करना सर, आप सेव व्यू पे जाइए। सेव व्यू पे जाएंगे, सेव व्यू पे आपने क्या है, ट्रायल बैलेंस का आप XYZ कुछ भी नाम जो आपका मन करे वो नाम दे सकते हैं सर। मैंने यहाँ पे ट्रायल दे दिया, मेरी फर्म का नाम है गौरव। अब वो मेरे से आगे क्वेश्चन पूछता है एडिशनल, सेट दिस डिफॉल्ट व्यू फॉर रिपोर्ट। यस, डिफॉल्ट व्यू आप सेट कर दीजिए, जब भी मैं देखना चाहूं मेरे को रिपोर्ट ऐसी ही नजर आई। इसके बाद इसने पूछा एडिशनल इंफॉर्मेशन। वो क्या पूछता है, क्या ये फॉर्मेट आपको सभी कंपनी में अप्लाई करना है? अगर मैं कर दूंगा सभी कंपनी पे, तो जैसा मैं अब खोलूंगा सभी कंपनी को, जब भी ओपन करूंगा सब कंपनी पे ऐसे ही दिखेगा। अगर मैं कहूंगा दिस कंपनी, तो इसी कंपनी के लिए होगा। मैं अभी ऑल कंपनीज कर देता हूं। ये मेरे से पीरियड के लिए भी पूछता है, पीरियड मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। अब सर ये मैंने रिपोर्ट व्यू सेव कर दिया। अब मैं गया सर कहां, स्टॉक में, स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में गया, यहाँ पे इस टाइप का व्यू है। मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग तो देखने है ना। मैं यहाँ पे सर ओपनिंग करूंगा, इनवर्ट करूंगा, आउटवर्ड करूंगा और डिटेल करके सर मैं यहाँ पे इस तरह से आया। अब यहाँ पर भी सेव व्यू का ऑप्शन है। स्टॉक समरी, मान लीजिए मैंने स्टॉक समरी में डाल दिया स्टॉक समरी कोमल। कोमल जैसे मैंने यहाँ पे डाला, अगेन वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है आपको डिफॉल्ट व्यू सेट चाहिए? यस। और आपको सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल है? मैंने कर दिया दिस कंपनी। नहीं चाहिए मुझे सभी कंपनी पे। अब देखिए सर, अब मुझे ध्यान आया मुझे ट्रायल बैलेंस में जाना है। मैं वापस गया ट्रायल बैलेंस। अब आपको क्या लगता है ट्रायल बैलेंस कैसा दिखेगा? सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस? अब देख लेते हैं ना सर। ये देखिए ओपनिंग भी आ रहा है, नेट भी आ रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है। नेट क्यों आ रहा है? नेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कमांड जो लिया था ना सर, वो नेट का लिया था। अगर मैं इसमें नेट ट्रांजैक्शन नो कर दूं, जैसे मान लीजिए मैंने नो कर दिया यहाँ पे, और अगेन मैं इसको सेव कर दूं इसी व्यू से, ठीक है सर। अब मैं स्टॉक समरी में जाके चेक करता हूं। पहले स्टॉक समरी में देखिए मेरा ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड दोनों आ गए सर। अब वो व्यू नहीं आएगा क्लोजिंग वाला। अब मैं एक मिनट ट्रायल में जाके देखता हूँ क्या हो गया। सर देखिए क्योंकि मैंने व्यू चेंज कर दिया था इसलिए वो डेबिट क्रेडिट दोनों आ गए। तो सर ये इतने बढ़िया कमांड देते। अब एक बात बताइए सर, मैं जब भी ऑडिट करता हूँ मुझे अनसिक्योर्ड लोन की इंफॉर्मेशन देखनी होती है, ओपनिंग क्लोजिंग देखना होता है। पता लगता है ओपनिंग भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, क्योंकि ओपनिंग में तो था नहीं बैलेंस, क्लोजिंग में बचा नहीं, बीच में ट्रांजैक्शन हो गया। और अगर मैं ट्रायल नहीं देख पाया, सीधा बैलेंस शीट देखता हूं, तो ऑडिट रिपोर्ट में मेरे को ये समझ में आएगा कोई भी इसने अनसिक्योर्ड लोन ना लिया ना दिया। मान लीजिए बैंक अकाउंट ओपनिंग भी नहीं था, क्लोजिंग भी नहीं था, मैं तो ये मानूंगा है ही नहीं, क्योंकि दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से पहले से ही करके रखेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप इस तरह से इस व्यू को देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या ये परमानेंट सेव हो गया? नहीं, परमानेंट सेव नहीं हो। आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं, या चेंज व्यू की एक कमांड है, आप उस पर जाएंगे, आपके सामने डिलीट सेव व्यू आ रहा है। आपने क्लिक किया, ट्रायल बैलेंस मुझे डिलीट करना है, मैंने ट्रायल बैलेंस डिलीट कर दिया। इसके बाद में डिलीटेड सेव व्यू पे जाना है मेरे को, और कौन कौन सी मेरी पार्टी से वो सेव्ड है, मतलब मेरी कौन कौन सी रिपोर्ट है सेव है। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये दो आ रही है सेव व्यू की, एक स्टॉक ग्रुप आ रहा है और एक स्टॉक समरी कोमल आ रहा है। मैं इस पे गया सर, यहाँ पे चला जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे जाके अपना उसी में, एक मिनट के लिए मैं दोबारा जाता हूँ सर गो टू पे। मैं यहाँ पे चला गया सर। मैंने जब मैं यहाँ पे चेंज व्यू पे जाऊंगा तो चेंज व्यू पे अगेन मैं सर डिलीट सेव व्यू कर दूंगा। ये मेरी दूसरी रिपोर्ट डिलीट हो गई सर। अब मैं तीसरी रिपोर्ट भी एक मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ सर, एक मिनट बस, ताकि आपको ये पता लग जाए कि बाकी फिर रिपोर्ट में चेंज आया है या जो मैंने सेव किया था उस हिसाब से दिखती है। मैं स्टॉक समरी ये मैंने कोमल के नाम से सेव किया था, चेंज व्यू, और मैंने इसको ये डिलीट सेव व्यू कर दिया, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया सर, ठीक है सर। अब मैं दोबारा से ट्रायल बैलेंस देखता हूँ, डिस्प्ले ट्रायल सर गायब, जो मैंने सेव किया था सब गायब हो गया सर, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। मैं नहीं चाहता कि ये चीज किसी और को पता लगे। अगर आप चाहें आपके आर्टिकल को पता लगनी है तो आप उसको बताइए, नहीं चाहते तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से अब मैं ये तो ट्रायल देखा, मैं स्टॉक समरी देखना चाहूंगा तो सर उसमें भी ये नजर नहीं आएगा। तो सर ये मैंने अभी, मेरे पास 4:30 का मेरा टाइम है, सिर्फ 4 मिनट मेरे पास में है। कुछ और इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं सर। मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया सर? सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो हमारे जीएसटी के अमेंडमेंट थे, कौन से, जो फाइनेंस एक्ट 2022 में आ गए सर। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस किया
कि आपको टैली प्राइम से टैली ईआरपी से टैली प्राइम में क्यों माइग्रेट होना चाहिए। मैंने आपको रीजन बताया, गो टू बिल्कुल गूगल है, जो रिपोर्ट आप सोच सकते हैं, आपको कुछ लेटर टाइप करने, सारी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएंगी। आप HSN वेरीफाई कर सकते हैं, आप GSTN वेरीफाई कर सकते हैं। ERP 9 में जब आप जेसन अपलोड करते हैं तो आपको गलती पता लगती है, यहां पर पहले ही गलती ठीक हो जाती है, उसके बाद HSN जेसन जनरेट होता है, अपलोड हो जाती है। मैंने आपको सेव व्यू का भी बता दिया। अब दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ये देखिए, अगर आपको ध्यान तो होगा ही, नेचुरल बात है, हम जीएसटी में काम कर रहे हैं। ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया उन कंपनीज पे जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2021 वाज मोर देन 50 करोड़। अब टैली कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े जिनकी टर्नओवर है 100 करोड़ 50 करोड़, वो लोग भी तो टैली यूज करते हैं, और 50 करोड़ वाले तो बहुत है। तो क्या है सर, जरूरी नहीं है कि आप अपना जो ई इनवॉइस है आप उस पैटर्न पे बनाए जो गवर्नमेंट ने बताया। गवर्नमेंट ने आपको अलग से 10 वो बता दिए, वैलिडेशन चेक, वैलिडेशन पॉइंट बता दिए, एक्सेल यूटिलिटी दे दी, जिसमें आप अपने इनवॉइस की डिटेल फिल करेंगे, आपके पास में एक जेसन जनरेट हो जाएगा, और वो जेसन आप अपलोड कर देंगे, और उस जेसन से आपका ई इनवॉइस बन जाएगा। जब मैंने पहला ई इनवॉइस बनाया था ना, तो सर मुझे 2 दिन लग गए थे। कहने में बड़ा आसान है, लेकिन जब उसमें एक एक चीज फीड करनी पड़ती है ना, HSN कोड है, और आपने फॉर्मेट गलत कर दिया, आपने ऑब्लिक की बजाय फुल स्टॉप लगा दिया, डैश लगा दिया, आपने डेसिमल गलत लगा दिया, आपने कॉमा नहीं लगाया, आपने HSN कोड गलत सिलेक्ट कर दिया, आपका पिन कोड गलत हो गया, बहुत सारे चेक लगा रखे हैं उन एक्सेल फाइल्स के अंदर, जो आपके डाटा को, जो आपका इनवॉइस है जिसको वो ई इनवॉइस के लिए जेसन में कन्वर्ट करते हैं, इन सब के लिए फुल स्टॉप लगा दिया टैली ने। आपको कुछ नहीं करना सर, आप जैसे इनवॉइस बनाते हैं वैसे बनाते रहिए, जैसे आप इनवॉइस बनाते रहिए। जब आप इनवॉइस बना लेंगे तो आपके पास ना एक ऑप्शन पूछता है, वो आप इसे सेव करना चाहते हैं, डू यू वांट टू प्रिंट इट, तो वहीं पे एक और ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। जैसे मैंने अभी आपको GSTN का दिखाया कि आपको वैलिडेट करना है, इमीडिएट क्या करेगा वो आपको सीधा ई इनवॉइस पोर्टल से, क्योंकि ई वे बिल के थ्रू लिंक करते हैं ना हम ई इनवॉइस में, वहां से लिंक करेगा, और कुछ ही सेकंडों में आपको ई इनवॉइस जनरेट करके दे देगा। और वो इनवॉइस जो जनरेट करके देगा, उस पे आपका IRN नंबर कंप्लीट होगा, और उसके साथ साथ ई वे बिल भी जनरेट कर देगा सर, और आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको ई इनवॉइस बताया। अब ई वे बिल का क्या करेंगे, मान लीजिए आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, या ई वे बिल आप उस वक्त नहीं बनाना चाहते, तो उसके लिए भी फैसिलिटी है सर। जब आप टैली में जाते हैं, जब आप अपनी सेल्स की डिटेल फिल करते हैं, तो वहां पर वो आपसे डिटेल पूछता है कि डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपसे पूछेगा डिस्पैच फ्रॉम, डिस्पैच टू, पिन कोड, आपको किलोमीटर खुद कैलकुलेट करके डालना है। जब आप खुद किलोमीटर कैलकुलेट करके डालेंगे, और वो आपसे पूछेगा रेगुलर सप्लाई है, किसको सप्लाई, सारी डिटेल जो आप GSTR पार्ट 1 में भरते हैं, पार्ट 1 भर जाएगा। आप उसमें ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्टर की आईडी डाल दीजिए, ट्रांसपोर्टर की आईडी भी आ जाएगी, आप ट्रांसपोर्टर की व्हीकल का जो नंबर है वो भी डाल दीजिए, वो भी आ जाएगा। आप इमीडिएट जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे, जैसे मैंने आपको GSTN का वैलिडेशन बताया था, वैसे इमीडिएट आपको ई बिल जनरेट करके देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इमीडिएट भी जनरेट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पूरा दिन आपका 10 बजे से 4 बजे तक इनवॉइस बनते हैं, और 5 बजे से 6 बजे तक आपका ई बिल जनरेट होता है, तो वो ऑप्शन भी है इसके अंदर। आप पूरे दिन इनवॉइस बनाइए, 4 से 6 बजे का टाइम आपने फिक्स किया हुआ है, मेरे 10 इनवॉइस बने, 6 की गुड्स डिस्पैच होनी है, 4 की नेक्स्ट डे होगी, तो आप केवल 6 का इनवॉइस बना सकते हैं। आप 4 का अगले दिन बना सकते हैं, आप 10 का कंबाइंड बना सकते हैं, 10 अलग अलग बना सकते हैं। तो ये सारी फीचर आपके टैली प्राइम के अंदर है। मैंने कोशिश की जो नए अमेंडमेंट थे और जो टैली प्राइम में फीचर है उनको कवर करने की। एग्जैक्टली 4:30 टाइम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर पेशेंस हियरिंग, एंड थैंक यू वेरी मच टू द टैली who gives me this opportunity. Thank you. So just a second, Rajesh sir, there is a question in the Q&A, if you could address it. Definitely. Yeah. First question, good afternoon to all. Thanks for being here today. Okay, this is from the tally. Rajesh sir, we will have to close this another No, 5 minutes. sir, वो chat है. If you could go on the Q&A thing. Okay.
how to expand all group with a command alt 4+1 does not work. How to expand all groups? सर आपका क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ, मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन जो स्पेसिफिक है, या तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, या मुझे लग रहा है आपका HSN वैलिडेशन से था, जो मैं आपको कमांड बता रहा था अभी। आपको पहले डाटा सिलेक्ट करना है, देन यू नीड टू सिलेक्ट ऑल डिटेल्स, देन ऑल GSTN number will be verified from the GSTN portal. How to generate invoice through DSC? ये टैली में फीचर, हाउ टू जनरेट इनवॉइस थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। मुझे नहीं लगता कि टैली के अंदर अभी फीचर है जो डिजिटल सिग्नेचर से आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, आई एम गौरव। हेलो। गौरव जी। सर जैसे हम एक्सपेंड करते हैं Alt F1 से, तो कई बार सर वो एक्सपेंड नहीं होते ग्रुप्स। जैसे हम P&L में होते हैं या बैलेंस शीट में ग्रुप्स होते हैं, तो Alt F1 से जैसे ही हम एक्सपेंड करना चाहते हैं एट अ ग्लांस, तो वो ग्रुप्स जो क्रिएट होते हैं वो नहीं एक्सपेंड हो पाते। तो उसके लिए कोई कमांड है सर ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी लाइव अभी कर रहा हूँ आपका, जो मैंने क्वेश्चन सुना, मैं बैलेंस शीट में गया, Alt F1 किया, P&L में गया, Alt F1 किया मैंने, तो एक्सपेंड हो रहा है। ट्रायल है, ऑल F1 किया मैंने, हो रहा है सर वो। सर जैसे हम डेटर्स के ग्रुप बना लेते हैं कई बार कि ये इंडियन मींस उसको तो आपको एंटर करना पड़ेगा सर, उसको तो आपको जैसे शिफ्ट एंटर से हम एक्सपेंड करते हैं वो चीज। आपने कोई ग्रुप बना लिया है, जैसे डेटर्स का ग्रुप है, तो सर वो आप Alt F1 से नहीं, Alt F1 से भी हो रहा है सर। मैंने अभी सिंगल ग्रुप किया, जैसे मेरा कैपिटल का है, कैपिटल में मैंने डिफरेंट टाइप के हेड खोले हुए हैं, सेट्स का है, वो आपका हो रहा है सर, एक्सपेंड हो रहा है। आप कहें तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर। मैं सर एक मिनट आपका कुछ एक मिनट सर, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट सर, क्योंकि ताकि मैं आपका क्वेश्चन भी समझूं क्या है सर। ये स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर। सर देखिए, आपने कहा, एक बार मैं करके देखता हूँ सर। सबसे पहले मैंने किया सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, मैंने Alt F1 किया, हो गया। ये आप एग्री कर रहे हैं, होता है। यस सर। बैलेंस शीट भी आप एग्री कर रहे हैं, होता है, मैंने कर दिया। अब मैं ट्रायल बैलेंस में गया, ट्रायल के अंदर मैं गया सर, मेरे सामने अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं Alt F1 कर रहा हूँ कैपिटल पे, Alt F1 कैपिटल हो गया सर। अब लायबिलिटी में तो एक ही है, अब इसे मान लेते हैं ये ड्यूटीज एंड टैक्सेज है। यस सर। है ना? तो इसको एक मिनट के लिए मैं Alt F1 किया मैंने, अच्छा शॉर्ट हो गया, नहीं ये सब ग्रुप हो गया, इसका मतलब ये। ओके यस सर। तो सब ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शिफ्ट एंटर से होना चाहिए। एक मिनट रुकिए सर। शिफ्ट एंटर से होता है सर? हाँ शिफ्ट एंटर से होना चाहिए, उससे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट असेट्स के अंदर अगर आपने कुछ खोला हुआ है ना, तो फिर वो शिफ्ट एंटर से, मतलब आपने ग्रुप के अंदर कोई सब ग्रुप है, जैसे करंट असेट्स मेन ग्रुप हो गया, उसके अंदर आपका सब ग्रुप आ गया, तो वो फिर शिफ्ट एंटर से होगा। या कोई टैली की तरफ से कोई है हमारे ऑडियंस में, तो वो कुछ बता सकें इस बारे में? इसके अलावा नहीं, मुझे लगता है सर शिफ्ट एंटर से होगा। और बताइए सर। थैंक यू सर, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। I think Jiten sir has an answer. हेलो हेलो। हाँ Jiten sir, we can hear you. हाँ अच्छा राजेंद्र जी, जब भी वो ग्रुप सब ग्रुप खोलते हैं ना, जब भी, हेलो सर, वो सब ग्रुप के खोलते हैं, जब भी सब ग्रुप के अंडर, हेलो कैन यू हियर मी? Yeah, हाँ Jiten sir, we can hear you. जब भी वो ग्रुप्स बिहेव लाइक सब लेजर यस नो रहता है, वो आप करेंगे ना तो वो भी ऑटोमेटिक खुल जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। Okay, I think that helps. वोल्टर में जाके आप ग्रुप बिहेव्स लाइक सब लेजर यूज किया ना आपने, जिधर जो भी सब ग्रुप क्रिएट करेंगे आप अंडर सम ग्रुप, और उधर एक क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रुप बिहेव्स लाइक सब लेजर यस और नो। Okay. तो दैट इफ यू से यस नो आप करेंगे ना, तो उसमें अगर जो भी है आप किया रहेगा उसको रिवर्स कर दो अभी, तो क्या आपका वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसमें आपको कंट्रोल ये करना नहीं पड़ेगा, राइट क्लिक करके खोल ऐसा। तो कंट्रोल F1 की कमांड चलने लगेगी अगर हम उसको ये कर देंगे, बिहेव लाइक एज ए मेन ग्रुप। हाँ ऐसा, यस याद आ गया सर, मेरे कमांड याद आ गया। हाँ, और जनरली क्या होता है, डेटा स्टेटस का जनरली नहीं दिया टैली ने, क्योंकि वो डेटा स्टेटस यस देंगे ना पहले से ही, तो इतना बड़ा बैलेंस शीट दिखेगा आपको। अगर डेटा ज्यादा है 200-300, इसके लिए वो टैली ने वो इंटेंशनली वो ये करके रखा है।
बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में आपको नहीं दिखेगा, बट ट्रायल बैलेंस में जब भी आप करेंगे तब भी आपको करना है तो कर सकते हो। Any other थैंक यू। question? Thank you, sir. No, sir. No, I think don't have any further question. I think one more question we can take. We are already Bhavin Thakkar. I'll just allow him to talk. Bhavin Thakkar ji, if you have a question, you can ask. For some issue, he might not be on the screen. So I think we should conclude our session. And sir, honestly, you did it. Hats off to you. The session went amazing. आपने सब कुछ इतने short time में इतना अच्छे से समझाया. In my personal opinion, it's a loss for people who could not attend today's event. But I'm sure this session will be uploaded on YouTube, so people can benefit from that. Thank you one and all for attending, and thank you Rajesh sir once again. Sir, it was really great, Rajesh sir. Thank you, thank you, thank you. Yeah. GST का इतना मालूम नहीं था क्लाइंट सबको. It's really great. Thank you, thank you. Thank you, sir.